Hi everyone. Hi, how are you? Just let me know if my audio and video are in sync. There was a lot of backend tech that we were handling, so that is why we were delayed by about 2 minutes or so. Just let me know if there is any distortion. Yes, yes, please let me know. Hi, Ramneek. Ramneek is there in the chat. Hi. So yeah, let us wait for a couple of minutes. You know, finally we are live. Around half an hour, 1 hour. There was a lot of prep backend में with the tech team, so that there are no last minute glitches. So I hope there's no issue. Please let me know, and then we'll start. Finally, we are coming with our CFA prerequisites batch of the eco subject. So we were discussing very lately, like there are three subjects in the prerequisites. One is FSA, the other is quantitative methods, and third is eco. But like quants had been done, FSA was in progress. So there was a lot of there were a lot of people who were asking when will eco ke prerequisites start. So here we are finally with our eco ke prerequisites, and let us wait for 1 more minute and then we'll start. Great. 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 Hi, hi, hello. Cool. So let us start. So, hi everyone, my name is Gautam, and finally, welcome back to the channel. So, there was a lot of discussion, there was a lot of wait for the prerequisites batch for the eco subject. So, here we are finally with this. So, a lot of learning to happen, a lot of concept building, a lot of question solving to happen. But how the entire course is structured, we'll just go about it. But overall, it is very chill. इतना load नहीं लेना है आपने, because these are prerequisites, and so the institute thinks that you already, it presumes that you already know these concepts, and so इनकी direct testability is not there, but yes, directly via indirectly via करके आ जाएंगे. So that is why it is very fundamental and foundational to understanding, but we'll study with a very open mind, है ना. तो कोई load नहीं लेना, आराम से कर लेंगे, ठीक है. So it is 7:05. I believe we should start, वरना delay हो जाएगा, and I'm wanting we should close in time. Just let me know. Great. ठीक है. So finally we're starting with our CFA prerequisites batch. So sir, ये prerequisites batch पहली बात होता क्या है? So the institute, the CFA institute, when it comes out with its core curriculum, it also comes out with a suggestive list of topics जो आपको आने चाहिए. वो प्रिज्यूम करते हैं कि आपको आने चाहिए ये टॉपिक्स बिफोर सिटिंग फॉर योर लेवल 1 एग्जाम्स. तो इसमें सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स द इंस्टीट्यूट ऑलरेडी प्रिज्यूम्स आपको आते होंगे. वन इज क्वांट्स, द अदर इज एफएसए. एफएसए इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, and the third is economics. ठीक है सर. So I'll be taking the economics के prerequisites reading, and there are a lot of chapters in this. There are approximately 7 chapters. So we'll structure, we'll understand how कैसे कैसे ये live sessions होंगे, how many classes will it take to complete the eco के prerequisites, is every chapter connected with the other chapter, या standalone basis पे भी हम ये pull off कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है व्हाट विल बी द मोड ऑफ दीज लेक्चर्स. तो सर ये लेक्चर्स वुड बी एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड the prerequisites, the pre-requirements of the institute. So we will come out with YouTube live sessions जहाँ पे we'll have one-on-one discussions, है ना, and we'll talk, we'll understand all concepts. There'll be a lot of chat coming from your end. So अगर आपकी कोई भी doubts हो, in case you need any query resolution, you can reach out to me, you can write it in the chat. I have my Telegram that we have listed down in the description. You can reach me out on LinkedIn, on Instagram, on YouTube as well. So these are how the lectures would be structured. So these would be live sessions, ठीक है sir. But the $1,000,000 question या the big question, why prerequisites, हम directly अपनी CFA level 1 via lectures क्यों नहीं start कर सकते. वैसे तो वो कर सकते हैं. We are doing the prerequisites in the lectures also, ताकि if there is a person who is from a non-finance background, from a non-commerce background, जिसने finance कभी पढ़ा ही नहीं है, who does not know about finance, who wants to pivot into a role of finance. जैसे even I was there. I was working in KPMG in audit, but I felt that it was too accounting based, and I wanted to move into
a department for finance. I wanted to move, I wanted to pivot. So इसलिए I went into the due diligence department. So what helped me was these additional certifications, these additional courses. So the reason we came up with this is so that any person who is not at all even familiar with finance, he can understand it from the base and he's able to clear his all levels of CFA. है ना? तो सर व्हाई दीज प्रीरिक्विजिट्स, सबसे पहले दिस इज वेरी फंडामेंटल टू योर अंडरस्टैंडिंग, दीज आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस. ठीक है, आप डायरेक्ट लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो बट दीज विल जस्ट सप्लीमेंट इन योर अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड आता है दिस ब्रिजेस द नॉलेज गैप फॉर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड. तो अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, कोई अगर आपका मेडिकल का बैकग्राउंड है, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट कॉमर्स, अबाउट अकाउंटिंग, अबाउट इकोनॉमिक्स पर से, तो दिस इज द रीजन वी आर कीपिंग दीज लेक्चर्स, ताकि आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यस सर वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, है ना. एंड थर्डली, if the more you are prepped during these building block classes, it saves time during your final prep. When you will do your CFA का level 1 का prep, वहां पे बहुत help होएगा. ठीक है सर. तो सर what will you expect, what can you expect from these classes? You will get a soft copy of the notes and the question bank. तो सर are these paid, हमें कहीं जाके लेना है? No, they are absolutely free, है ना. तो this is available on www.bbvirtualsglobal.com. The link is also there down in the description, है ना. You just go click and उसके free resources के tab में you can get these notes and question bank. तो सर what are these notes and question bank? The entire chapter जो होगा of the institute, we have condensed it, we have summarized it with a comprehensive evaluation of the entire topic, है ना. ऐसा नहीं है कि हमने summarization में कुछ cut off कर दिया है. No, every concept which is very important to understand, we have kept that. Along with it, with each subtopic we also have the question, ताकि यहाँ पे आपने concept समझ में आया आपको, वहाँ पे आपने question solve किए और आपका पूरा जो prep है वो हो गया. ठीक है. So that is how it will go. You can get the soft copy of the notes and the question bank at bbvirtualsglobal.com in the free resources tab. ठीक है सर. Why these prerequisites are happening? ताकि at the same time we are also running our live batch, है ना, for CFA level 1 May 26 attendees. तो उनके लिए भी this is a lot of benefit for May 26 and onwards, in case you want to understand the granular details of economics, of quants, of FSA, of the prerequisites. So this will help you in understanding even that. ठीक है सर. So just let me know if I've been able to communicate well, कोई issue तो नहीं है. I hope there is no sync का issue. Great, great, great. चलो, तो सर फाइनली वी कैन स्टार्ट विद आवर इकोनॉमिक्स के प्रीरिक्विजिट्स, है ना. तो सर देयर आर इन टोटलिटी 7 सब्जेक्ट, 7 चैप्टर्स जो कि इकोनॉमिक्स में द इंस्टीट्यूट हैज गिवन. The first is topics on demand and supply. Demand and supply is from a consumer's and from a producer's point of view. We normal जो retailers होते हैं, we have our demand, we have wants, we have our wishes, our desires. तो उनका क्या money पे impact होता है ना. So we'll understand about that. अब ये अगर demand and supply हम कर रहे हैं, any supplier who would want to sell, he would sell with the intention of creating profit, है ना. What he would want to mint profit. तो can he mint profit? In what circumstances can he mint profit? कैसा market होना चाहिए? ज़्यादा competition होगा तो वो profit नहीं ले पाएगा, कम competition हो पाएगा तो he'll be able to earn profits. तो here we'll understand about market structures. ठीक है. देन थर्ड आता है एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. यही जो हमने डिमांड एंड सप्लाई एट एन इंडिविजुअल लेवल पढ़ा, अब जब सारी फर्म्स कलेक्टिवली, सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज जब इकट्ठी होकर आती है, व्हेन दे help in satisfying the demand by supplying goods and services, by supplying commodities, तो aggregate में क्या demand and supply पे affect होता है on an overall country level, on an overall economy level, है ना. तो हम वो समझेंगे. इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस साइकिल्स. सो व्हाट आर बिजनेस साइकिल्स? बिजनेस साइकिल्स है जैसे कोई एंटिटी है या कोई भी प्रोड्यूसर है, दे आर गोइंग थ्रू बिजनेस साइकिल्स, कि कभी कभी उनका धंधा बहुत अच्छा होता है, कभी कभी धंधा बहुत लो होता है, लाइक द दिवाली सेशन दैट इज हैपनिंग. तो दिवाली के टाइम में जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गई, उनके बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, बम्पर लॉटरी सेल्स होती है उनकी. But at the same time, industries like pharmaceuticals, they are unaffected by business cycles. अगर किसी की तबीयत खराब है, even if there is a boom या even if there is some recession that is happening in an economy, उसका ज़्यादा impact नहीं होगा. तो इसका impact directly entities के profitability पे भी होता है. अब वो कैसे होता है हम ये सारा समझेंगे. ठीक है.
अब इसके बाद हम ये समझेंगे गवर्नमेंट का भी रोल इन सब में. इकोनॉमी इज प्लेज forget it. So economy, overall economy comes under the play of the government, है ना. तो government has a lot of decisions that it undertakes. तो उन decisions का क्या impact होता है on the business, on the consumer, वो क्या impact रखता है, तो that will understand in fiscal policy and monetary policy. ठीक है. फाइनली हमने ये एट अ डोमेस्टिक एरिया पढ़ लिया, एट अ डोमेस्टिक फ्रंट समझ लिया है कि अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में ये कैसे होता है, बिजनेस हमारे में कैसा होता है, प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं, एग्रीगेशन में प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, एंड हमारे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो सकती है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे अफेक्ट होता है. एंड लास्टली अगर कोई बिजनेस है, इज इट गोइंग थ्रू डिफरेंट साइकिल्स कि कभी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, कभी लॉस में चला जाता है. दिस वी ऑल अंडरस्टूड एट अ कंट्री लेवल, है ना, डोमेस्टिकली. बट व्हाट हैपेंस यही इफ इट इज हैपनिंग समवेयर आउट, तो वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, है ना. तो इंटरनेशनल ट्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यही जो हमने सेम कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री या डोमेस्टिक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा होगा, सेम हम समझेंगे कि overall when we step outside our domestic territory in a international territory like US, like Europe, like different countries or continents में उनका impact कैसे होता है. And lastly, whenever we are dealing with multiple countries, तो currency exchange rate also comes into play. ठीक है. So sir, this is the entire flow of the lectures कि कैसे कैसे होंगे. Although the institute has given 7 chapters ranging 1 to 7, but ऐसा नहीं कि after one we have to do the second. They can completely be done on a standalone basis also. कि हमने समझा कि हमारा impact क्या होता है डिमांड या सप्लाई पे. ठीक है. हमने फिर ये समझ लिया कि गवर्नमेंट का उस पर क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है. तो इट इज नॉट कि वी अंडरस्टैंड इट वन बाय वन, वी कैन टेक ऑल चैप्टर्स एट अ स्टैंड अलोन बेसिस एज वेल. ठीक है सर, जस्ट लेट मी नो आपको समझ में आ रहा है या नहीं. ग्रेट, ग्रेट. तो यहाँ these 7 chapters can be done in any sequence. करेक्ट. ठीक है. सो हेयर द लैपटॉप इज, इसलिए मेरी विजन थोड़ी स्क्यूड है, बट डू नॉट वरी, आई एम एड्रेसिंग द कैमरा ओनली. ठीक है. Great. So, just one last thing before we step on to the official lecture when we start. It is like, what can I expect from you? Yeah, what would your role be over here? Is you just have to do one thing, that is to revise each day's class along with the question that we'll solve. है ना. Questions won't be very high क्योंकि इनकी testability नहीं है. So like there will be a major question chunk would be ranging of 20 or 25 questions. इसके beyond bracket में questions नहीं है. So we'll practice those 20-25 questions in the class itself. ताकि concept हो गए, questions भी हो गए, and for the next day we are prepped कि next chapter करेंगे. So what is your role over here कि जो हमने chapter पढ़ा और जो questions हमने solve किए, you just once revisit it before the next class. ठीक है. And as the tagline goes, and it is even written above, कि study smarter and crack CFA faster. So this exam is not an exam जहाँ पे आप 3 घंटे लिख रहे हो, आपने learn किया है कुछ तो आप लिख रहे हो, आप reproduce कर रहे हो. नहीं, this is a very conceptual exam, है ना. The institute has made this exam in such a way ताकि when you are understanding concepts, you are able to apply it in real life also. You don't have to rote learn concepts, you just have to apply them. ठीक है सर. So at any point in time when you are cramming, that is not the right approach. ठीक है. You need to understand, and जैसे ही आपने अंडरस्टैंड कर लिया सप्लीमेंटेड विद क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कंसोलिडेट हो जाएगा. ठीक है. लेट मी नो यहाँ तक इफ एवरीवन इज देयर विद मी. Great. And after this we can dive straight into our notes, and we can start with demand and supply. And this is the first chapter we'll be doing. Just let me know, give me a thumbs up or something. I know that we are connected, है ना. So that would just be good. I'll just check मेरे end पे भी. ठीक है. Great. So let us start with demand and supply के official lecture notes. ठीक है सर. So anything that I am scribbling at this point in time, you do not have to write, है ना. All these notes have been already provided to you in the free resources के टैब. तो कोई लोड नहीं है आपको बार बार लिखने की. Just pay attention and understand what we are learning over here. ठीक है सर.
डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, how the chapter starts or how the institute wants you to understand is that this is a very fundamental concept for entire economics. ठीक है, and when we say economics, what do we mean by economics? उसके क्या branches है? Are economics, what do you mean by economics? Economics is basically the study of money. We are understanding money, कि what is beneficial, what is not beneficial. ठीक है, so how the institute starts it is economics can be divided into two parts. कौन कौन से टू पार्ट्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? दिस एनालाइजेज मार्केट्स एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स हो गए जैसे मैं और आप, है ना, इंडिविजुअल्स जो हो गए या एक सिंगल एंटिटी जो होगी, उनका क्या डिमांड एंड सप्लाई होता है, उनका क्या डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसको एनालाइज करना, दैट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। वी आर लुकिंग एट अ वेरी माइक्रो लेवल। ठीक है, and then classifying these units into consumers and business firms. So whenever we study about microeconomics, तो microeconomics में दो entities आ जाते हैं या दो सब bifurcations आ जाते हैं। एक होता है consumers और एक होता है business firms। business firms और एक होता है consumers। ठीक है सर, consumer we can say is consumer who consumes the good, and business firms are something who produce the same good. ठीक है सर, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल ओवर हेयर, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो इसमें व्हाट डज इट से? कंज्यूमर्स आर यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल्स हु मेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर कंजम्पशन। तो एज कंज्यूमर्स we want to maximize our utility. Utility, what is utility? Utility is something that we can say as satisfaction. Anything, any action that helps us to satisfy our satisfaction, that is known when we say we are maximizing our utility. तो अगर for example हमने एक चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स का पैकेट इज ₹20, है ना, we would want कि the quantity in those chips के पैकेट is at max। ठीक है, अगर मैक्सिमम नहीं है देन वी विल गो फॉर अनदर चिप्स के पैकेट ताकि उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा हो। तो यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रुएंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर सैटिस्फैक्शन फ्रॉम यूजिंग और फ्रॉम ईटिंग दोस चिप्स। ठीक है, दिस इज जस्ट नॉट इन प्रेजेंट बट वी ऑल्सो वांट इट फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। ठीक है, हाउएवर who are business firms, जो हमने producers की बात करी थी, producers are profit maximizing producers who decide on output and input usage to maximize economic profit. तो हम जब यहाँ पे chips की बात कर रहे हैं, we are talking from a point of view of a consumer, we are wanting to consume chips. तो हमारा यहाँ पे क्या है? We talk about satisfaction, correct? But what does a business entity look for? Business entity is not looking for satisfaction, it is looking for just one thing, that is profit. How is it able to maximize this profit? ठीक है, with using the lowest raw materials and selling it at the highest price, तो कि ताकि जो profit हो वो maximize हो सके। ठीक है सर, समझ में आया? तो what is microeconomics? Microeconomics is understanding one, consumers, and second, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं सर? बिजनेसेस। ठीक है, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? कंज्यूमर्स का बिहेवियर क्या होता है? दे आर वांटिंग टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, कुछ भी खरीदेंगे उसकी यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा हो, यूटिलिटी। हाउएवर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो बिजनेसेस होते हैं, दे वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उनका यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, दे आर वांटिंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। ठीक है सर, ठीक है सर, they are wanting to maximize economic profit, 1 minute, economic profit taking into account opportunity cost. opportunity cost का concept आगे आएगा, we'll do this। ठीक है, अब आता है the interaction of utility
this interaction जहां पे the consumers are able to maximize their utility and जो businesses का motive होता है to maximize their profit, ये जहां पे intersect होता है या जहां पे ये इनका मिलन होता है, that is the concept of demand and supply. तो जहां पे consumers and जहां पे business firms, they are able to connect, they create a market. और ये market is based on demand and supply, because here they are wanting to maximize their utility and here they are wanting to maximize their profit. ठीक है सर. So this is the entire discussion on what is microeconomics. Microeconomics में we are understanding one business, we are understanding one producer, one consumer, मैं और आप, we are understanding our behavior. ठीक है. But now what is macroeconomics? Macroeconomics studies the aggregate quantities such as national output, such as national income, relying on microeconomic foundations and regarding individual behavior and markets. तो यही अब जब इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हो गए और बिजनेस फर्म्स हो गई, बिजनेसेस हो गई, अब यही जब मल्टीपल हमने पढ़ा, ये आए, देन फिर और बना, फिर और बनेंगे ये. तो जब व्हेन वी कलेक्टिवली स्टडी अबाउट देम, जब हम कलेक्टिवली स्टडी करते हैं इनके बारे में, who make up an economy, who make up an entire country, that is known as macroeconomics. Macroeconomics. तो माइक्रो इज कंसर्न विद अ सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल बोल दो या बिजनेस एंटिटी, बट जब बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज हो जाती है, व्हेन इट कम्स एट अ कंट्री लेवल, एट एन इकोनॉमी लेवल, तो एक एग्रीगेशन होने लग जाती है. और जैसे ही ये एग्रीगेशन होता है, दैट इज व्हेन नेशनल आउटपुट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. नेशनल इनकम की बात है कि एट अ नेशनल लेवल क्या इनकम है, एट अ नेशनल लेवल क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है. तो जब हम नेशनल का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. समझ में आता है सर? प्लीज लेट मी नो अगर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? प्लीज लेट मी नो. ग्रेट. अब हमें इतना तो समझ में आ गया है. व्हाट टुडे वी विल बी डूइंग इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. वी आर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंटिटीज वन एट अ सिंगुलर लेवल. ठीक है. तो आर फोकस वुड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स. इन चैप्टर्स टू कम जब हम एग्रीगेट आउटपुट वाला चैप्टर करेंगे या एग्रीगेट इनकम वाला चैप्टर करेंगे, एट दैट पॉइंट इन टाइम वील टेक इनटू कंसिडरेशन नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट. वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स विल कम इनटू प्ले, बट अभी के लिए वी आर फोकस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है द लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट इज डिमांड? सबसे पहले लेट अस कम ऑन व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड. माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. सबसे पहले सर, व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज समथिंग, we all have wishes, correct? We all have desires कि सर ये कार लेना है, ये फ़ोन लेना है, वो क्विज़ीन खाना है, क्विज़ीन खाना मतलब बाहर खाना खाना है. तो all these are wishes and desires that we possess, but once this is backed with the ability of money, जब आपके पास पैसा भी आ जाता है, ability of money, when you have the ability of backing your desire with money, then this becomes demand. ठीक है. So what is demand? Demand is desire backed by the ability of money. You have the ability to pay for the car, you have the ability to pay for this phone, है ना? तो when this comes into existence, this is known as demand. इसलिए हमने पढ़ा था कि demand is the study of money, है ना? तो जहां जहां पे भी money is involved, economics का play आ जाता है. ठीक है. But what do we mean by the law of demand? The law of demand states that as the price of a good rises, buyers purchase less of it, and as the price falls, buyers buy
more of it, other things kept constant. तो फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे ये चिप्स का पैकेट लिया था, विल टेक इट वेरी बेसिक, जो ये हमारा चिप्स का पैकेट था, कॉर्नेटोज का चिप्स का पैकेट ले रहे हैं सर, विल टेक इट मोर डिस्क्रिप्टिव। कॉर्नेटोज का चिप्स का पैकेट है सर, द प्राइस ऑफ दिस पैकेट इज फॉर एग्जाम्पल से 20। अगर 20 का प्राइस है, देर इज अ डिमांड से ऑफ सर 2 पैकेट्स, ठीक है, 2 पैकेट्स, बट सर इसका प्राइस जैसे ही अगर 15 हो जाता है तो वी वुड वांट टू बाई मोर ऑफ दीज चिप्स, क्योंकि अब ये हमारे लिए सस्ता हो गया है, उतनी ही पैसे में हम और चिप्स भी खरीद पा रहे हैं, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल वी विल वांट टू बाई मोर ऑफ दिस, तो 4 पैकेट्स हो गए। बट एट द सेम टाइम अगर इसकी जो प्राइसिंग है 20 रुपीज से जाके 50 रुपीज हो जाए, तो सर ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, तो हो सकते 0 पैकेट्स कोई ले, इसकी डिमांड ही 0 हो जाए कि कोई ले ही ना, या कोई सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक ही पैकेट ले कि सर हम फिर सिर्फ सेलिब्रेटरी या सेरेमोनियली हम एक पैकेट लेंगे कि सर अगर कुछ सेलिब्रेट करना होगा तब हम ये पैकेट खरीदेंगे कॉर्नेटोस का, वरना हम खरीदेंगे ही नहीं क्योंकि इतना एक्सपेंसिव हो गया है। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमांड सेज। द लॉ ऑफ डिमांड सेज कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, बायर्स परचेज लेस ऑफ इट, एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स, बायर्स बाय मोर ऑफ इट, अदर थिंग्स केप्ट कांस्टेंट। सर व्हाट आर दीज अदर थिंग्स? अदर थिंग्स आर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिमांड। जो आपकी मनी बैकिंग की एबिलिटी है ना, other things also affect it, it's just not the price। अब सर कौन सी है वो चीजें that affect your money? Sorry sir, I guess I received a call, sorry। हाँ जी, तो सर ये कौन कौन सी होती है? वन इज दी ओन प्राइस, ठीक है, जो कॉर्नेटोस का खुद का चिप्स का पैकेट होगा। सेकेंड होता है जो कंज्यूमर की इनकम है, तो व्हाट इज माई इनकम, है ना, कि कैन आई पे फॉर दोज चिप्स का पैकेट। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हो सकता है कॉर्नेटोज इज नॉट योर चॉइस, आपको कॉर्नेटोज नहीं खाने, आपको दूसरे चिप्स खाने जैसे लेज या ओएस खाने आपने चिप्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कैसे हो गए हैं? रिलेटेड गुड्स अब जैसे हो गए, कॉर्नेटोज नहीं खा के आपको डोरिटोज खाने हैं, ठीक है, आपको सर कॉर्नेटोज वाले नाचोस अब पसंद नहीं आते, आपको डोरिटोज के, तो जो डोरिटोज के प्राइसिंग होगी उस पे भी डिपेंड करता है कि कॉर्नेटोज का आपका क्या डिमांड रहेगा। इफ फॉर एग्जाम्पल जो डोरिटोस का चिप्स का पैकेट है दैट इज सेफ फॉर अबाउट 15 रुपीज, ठीक है, बट जो आपका कॉर्नेटोस का चिप्स का पैकेट है दैट इज से अबाउट 20 रुपीज, तो कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे दिस इज एक्सपेंसिव ना, तो आप एट एनी पॉइंट इन टाइम यू वुड गो फॉर डोरिटोस, करेक्ट। तो द लॉ ऑफ जो डिमांड होता है इट इज अफेक्टेड बाय न्यूमरस फैक्टर्स, इट इज जस्ट नॉट अफेक्टेड बाय द प्राइस। तो हम यही समझ रहे हैं यहाँ पे, वन इट इज अफेक्टेड बाय इट्स ओन प्राइस, यस। सेकेंड बाय द कंज्यूमर्स इनकम, हमारी इनकम कितनी है। सेकेंड tastes and preferences, do we even like the product, yeah we want to go for other products like Lay's, like OES के पैकेट्स। price of related goods such as substitutes and complements। so sir there is this concept of related goods। what are related goods? These are goods that are related to the good in question। related goods का क्या mechanism होता है, we'll understand that। related goods का क्या mechanism होता है, we'll understand। ये आ गया ऐसे, करेक्ट। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, वन इज सब्सटीट्यूट्स एंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। substitutes and complement, substitute are goods that can be used instead of the good in the question, instead of the goods in question। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर डोरिटोज वाला एग्जाम्पल, आई होप ई आता है डोरिटोज में। तो डोरिटोज इज द एग्जाम्पल ओवर हियर। क्या होता है डोरिटोज में कि लाइक इफ यू आर नॉट अ कॉर्नेटोज गाय यू कैन गो फॉर डोरिटोज। बट व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर विद द गुड इन क्वेश्चन। जिस गुड की बात हो रही है यहाँ पे कॉर्नेटोज, इसके साथ व्हाट वुड बी द बेस्ट? इसके साथ सबसे बेस्ट वुड बी अ साल्सा डिप।
Yes, these examples are very very granular. Every day we are enveloped by these examples और हमें समझ में भी नहीं आता. We are understanding eco यहाँ पे with the packet of chips. आप समझ रहे हो? तो this is how we can understand. इसमें कोई rocket science नहीं है, but the most important thing is how it affects our decision making. है ना? यही decision making is affecting us, consumers, businesses. Then it aggregates and it affects an economy. It affects a country altogether. है ना? आप समझ रहे हो? तो वापस आ जाते हैं सर डोरिटोज और कॉर्निटोज से. सो इट इज अफेक्ट जो डिमांड होता है ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. आगे आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में और इन डिटेल. इकोनॉमिस्ट्स कैप्चर दीज इन्फ्लुएंसेस यूजिंग अ डिमांड फंक्शन. अब जो इकोनॉमिस्ट्स हैं तो सर इन्होंने लाइक दे वेरी हाई एंड पीपल जो इन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली है. सो नाउ दे आर वांटिंग टू हैव अ वेरी सेट डेफिनेशन ऑफ व्हाट अफेक्ट्स डिमांड. है ना? जैसे देयर कैन बी मेनी थिंग. हमने जैसे 5 चीजें तो हमने ही गिनवा दी कि इनकम अफेक्ट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट, सब्स्टिट्यूट्स अफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स अफेक्ट, उसका खुद का प्राइस होता है दैट अफेक्ट्स. अब इकोनॉमिस्ट्स हैव गिवन इट a very simple name to it. This is known as a demand function. So a demand function is a relationship that relates quantity demanded to a set of independent variables. So they've just given a formalized version of जो हमने अभी तक पढ़ा है कि what affects a demand of a commodity. That is a demand function. तो जहाँ पे हमने ये relationship पढ़ लिया ना, that is the function we're talking about. ठीक है? So sir, what is a demand function? A demand function gives a relationship between demand and the factors that are affecting for it. तो हमने अभी पढ़ा था demand for chips is affected by उसका जो खुद का प्राइस है. One is that. Second, जो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स है, हमने यहाँ पे जैसे लेज ले लिया था, डोरिटोस ले लिया था, लेज ले रहे हैं हम यहाँ पे. One, it is also affected by the income of the consumer जो कंज्यूम कर रहा है. And at the same time, it is also not affected by a substitute. It is also affected by a complementary good. Complementary good is a good that is used in addition to the good in question. तो यहाँ पे साथ साथ डिप का भी in question आ जाता है. ठीक है? So sir, with this function, we can understand the relationship between the quantity demanded of cornettos chips with other factors. So sir, if you want to build notes along me, we can write this. What do we mean by P cornettos? P cornettos is price of cornettos. ठीक है सर. P lays is price of substitute good. What is the substitute good यहाँ पे? Substitute good is हमने यहाँ पे lays ले लिए थे. P नहीं है यहाँ पे. Then comes income. Income of the consumer. ठीक है? And lastly, it is also affected by P price of a complementary good. जो हमने यहाँ पे एक डिप ले लिया था एज एन एग्जाम्पल. ठीक है? तो सर इफ यू विल क्लोजली अंडरस्टैंड, इससे क्या होता है, if the price of cornettos chips increases, people may buy fewer packets of the chips. क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है. हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया था 20 से उसका प्राइस ऊपर बढ़ गया था 50 रुपीज. तो नाउ अब जो हम पहले 2 पैकेट्स कंज्यूम कर रहे थे, हम सिर्फ अब एक ही पैकेट कंज्यूम करेंगे क्योंकि इट हैज बिकम एक्सपेंसिव फॉर अस. है ना? सो दिस शोज एन इनवर्स रिलेशन between demand and price. It shows an inverse relation. What do we mean by an inverse relation? Inverse relationship कि when price is up, demand is down, and when price is down, demand is up. ठीक है सर. फिर आ जाता है if consumer income increases, if the income of the consumer increases, they may buy more of the cornettos chips as a treat, therefore demand increases. तो यहाँ पे we can understand there is demand and income में there is a direct relationship. Direct relationship क्या होता है कि when income rises,
demand also rises. While when income falls, जब कंज्यूमर की इनकम गिर जाती है तो उसका डिमांड फॉर कॉर्नेटोज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है सर. तो दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. हाउएवर जो प्राइस का रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्स. ठीक है. इफ द प्राइस ऑफ लेज चिप्स, if the price of Lay's chips increases, यहाँ पे substitute good जो है, if it increases, some consumers may switch to Cornetto's chips. Therefore, demand increases as Lay's and Cornetto's are substitute goods. So when we talk about substitute goods and जो demand of good है, उसका क्या relationship है? उसका relationship is direct. सर कैसे डायरेक्ट? अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है तो कंपैरेटिवली जो कॉर्नेटोज वाले चिप्स है वो अब चीपर हो गए हैं. हमने क्या एग्जांपल लिया था? अगर हम लेते हैं लेस का एग्जांपल लिया था, लेस के चिप्स के पैकेट इफ दे बिकम एक्सपेंसिव, तो जो कॉर्नेटोज वाले चिप्स थे उनका प्राइस तो सेम ही रहा, उनका तो नहीं बढ़ा, तो रिलेटिवली दे बिकम चीपर. अब रिलेटिवली चीपर लग रहे हैं तो हमें लगेगा कि यार हम यही चिप्स ले लेते हैं तो चीप भी लग रहे हैं, काम लेज लेंगे वो तो हमें ज़्यादा आउटफ्लो करना पड़ेगा पैसे का, हम कॉर्नेटोज ही ले लेते हैं. तो कॉर्नेटोज का जो है दिस बिकम्स रिलेटिवली चीपर बिकॉज इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर. अब हमें लग रहा है यार इसका इसका ऑल्दो इसका प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ है बट रिलेटेड गुड का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, तो अब ये रिलेटिवली चीपर लग रहा है तो हमें लग रहा है कि यार हम इसको खरीदते हैं. दिस इज बेसिक कंज्यूमर बिहेवियर. तो इसके वजह से हमारा जो डिमांड फॉर कॉर्नेटोज हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा. ठीक है. एट द सेम टाइम इफ लेज बिकम्स चीप, रिलेटिवली चीप, अगर उसका प्राइस रिड्यूस हो जाता है तो जो कॉर्नेटोज वाले चिप्स थे दे बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव. अब वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव फील होंगे. अब ये जो कि ये रिलेटिवली अब एक्सपेंसिव हो गए हैं, हमें लगेगा कि हम वापस लेज पे ही चले जाते हैं यार. कहाँ 35 रुपीज़ का पैकेट है, अब हमें 10 रुपीज़ में मिल रहा है, ये 20 का पैकेट 20 का ही है ना. तो वी वुड वांट टू गो टू द रिलेटिवली चीपर ऑल्टरनेटिव विच इज ओवर हेयर लेज. तो यहाँ पे इसकी डिमांड लो हो जाएगी. ऑल्दो इसका प्राइस रिड्यूस नहीं हुआ है बट इन रिलेटिव टर्म्स नाउ दिस इज लुकिंग एज अ बिट मोर एक्सपेंसिव, रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गया है. ठीक है सर, समझ में आया. तो हेयर वी अंडरस्टूड सब्स्टिट्यूट गुड्स इनकम एंड ओन प्राइस का इफेक्ट. लेट अस अंडरस्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ग्रेट. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी है. इफ द प्राइस ऑफ अ सालसा डिप, जो यहाँ पे हम सालसा डिप हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं, इफ उसका प्राइस इंक्रीजेज लेसर पीपल बाई नाचोज, देयरफॉर डिमांड डिक्रीजेज एज सालसा डिप इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. इसका सर हम एक ना न्यूमेरिक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो कॉर्नेटोस का चिप्स का पैकेट है दैट इज फॉर 20 एंड इसके साथ जो डिप आती है दैट इज फॉर ₹5. तो टोटल में इसका जो कॉम्बो होता है वो 25 रुपीज़ का हो गया है. बट से फॉर इंस्टेंस ये 5 रुपीज़ का बढ़ के 15 हो जाता है, तो ये तो 20 है प्लस 15, अब हमारा 35 का आउटफ्लो हो रहा है. तो कहाँ पहले 25 का आउटफ्लो हो रहा था, अब 35 रुपीज़ का आउटफ्लो होगा. तो अब ये हो गया हमारे लिए रिलेटिवली एक्सपेंसिव. रिलेटिवली क्या, दिस इज एक्चुअली नाउ एक्सपेंसिव फॉर अस. तो हम एज अ कॉम्बो इसको लेंगे ही नहीं, तो इसलिए इसकी भी डिमांड रुक जाएगी क्योंकि कॉर्नेटोस इज बेस्ट एंजॉयड विद डिप. बट अब डिप एक्सपेंसिव हो गया है और स्टैंड अलोन बेसिस पे नो वन वांट्स टू हैव कॉर्नेटोस, तो इसलिए जो कॉर्नेटोस का भी डिमांड है दैट आल्सो फॉल्स. तो इफ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स and demand of the said good, this is an inverse relationship. How sir? क्योंकि if the price of dip rises, demand for chips reduces. क्यों सर? डिमांड जो चिप्स का प्राइस है वो तो सेम ही रहा है, अब ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गया ना एज अ कॉम्बो खरीदने के लिए, तो इसलिए इसका डिमांड विल फॉल. तो इसलिए इसका बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. Similarly, if the price of dip falls,
कहाँ पहले 5 रुपीज़ में मिल रहा था एडिशनल, अब फ्री में देने लग गए हैं, तो सिर्फ 20 रुपीज़ में आप 9 चिप्स आप डिप भी इंजॉय कर सकते हो। तो अब ये रिलेटिवली चीपर हो गया हमारे लिए, है ना। तो अब जब प्राइस ऑफ द डिप फॉल्स, डिमांड यहाँ पे फॉर चिप्स इंक्रीजेज, ठीक है। दिस इज नोन एज एन इनवर्स रिलेशनशिप। वाई इनवर्स? क्योंकि व्हेन वन इज इंक्रीजिंग द अदर इज रिड्यूसिंग। हाउएवर अगर आप सब्सटीट्यूट्स में देखते, सब्सटीट्यूट्स में डिफरेंट था। इफ सब्सटीट्यूट में प्राइस इज गेटिंग एक्सपेंसिव, प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो लेस का प्राइस है वो बढ़ रहा था, बट यहाँ पे भी जो डिमांड था वो भी बढ़ रहा था। एट द सेम टाइम जब यहाँ पे प्राइस कम हो रहा था, जब चीप हो रहा था, तो यहाँ पे भी डिमांड कम हो रहा था। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग जो रिलेशनशिप यहाँ पे है इज डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है सर। डू लेट मी नो अगर आपको समझ में आ रहा है ये। तो अप टिल नाउ व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टूड कॉर्नेटोस के, सॉरी वी डू नॉट अंडरस्टैंड कॉर्नेटोस के चिप्स, फॉरगेट इट। तो वी अंडरस्टूड इकोनॉमिक्स एंड उनकी बाइफर्केशन की इट इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें वी अंडरस्टूड द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से हमें समझ में आया एक डिमांड फंक्शन एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट अफेक्ट दैट फंक्शन। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? उसका खुद का प्राइस होता है, उसकी इनकम होती है कंज्यूमर की, एंड द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स भी टू टाइप्स के होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है सर। एंड देन वी ऑल्सो मेंशन ऑल दीज फैक्टर्स ओवर हेयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज लेट मी नो इन केस कोई क्वेरी है। एक बार आई ऑल्सो लुक इन द चैट बॉक्स, कोई क्वेरी तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, आई होप। ग्रेट, ठीक है सर। So before we end the class, we'll also do one thing. We'll make a one-page synopsis of the entire thing जो हमने पढ़ा, ठीक है। If you want, we can get that also uploaded, but the best would be if you scribble alongside that one pager। हम ऐसे कर सकते हैं ताकि entire जो demand and supply है वो एक पेज के कॉन्सेप्ट बुक में, वो कॉन्सेप्ट नोट्स में वो कंसोलिडेट हो जाए, वो आपके पास रहे, ठीक है। दैट इज योर हार्ड वर्क, दैट यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। दैट इज वेयर योर रोल विल कम, ठीक है सर। अब आता है the next topic which is known as a demand equation। demand equation हमने पढ़ा था। डिमांड, सबसे पहले डिमांड फंक्शन, दिस वाज अ रिलेशनशिप ऑफ डिमांड with its factors affecting it, ठीक है। अब यही जब हमने एक अलजेब्रा मोड में हम दे दे, इफ इट कम्स इन एन अलजेब्रा एक इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं डिमांड इक्वेशन, ठीक है सर। इसको हम बोलते हैं डिमांड इक्वेशन। यही जो हमने सेम पढ़ा है as it is, if we read it in terms of maths, if we read it in terms of an equation, that is known as a demand equation। अब सर what is a demand equation हम पढ़ भी लेते हैं। It represents all factors in the form of algebra। तो जो QD होता है, QD is quantity demanded। Quantity demanded is 120 minus 5 price of cornetos plus 0.4 I is income over here, minus 3 P lays, price of lays over here। तो सर what does this entire equation say? इसको हम break down करते हैं। तो हमने बोला यहाँ पे quantity demanded is equal to 120 minus 5 price of cornetos plus 0.4 income minus P lays, sorry 3 price of lays। अब सर ये जो आपने प्लस माइनस जो दिए हुए हैं, इज इट पार्ट ऑफ द इक्वेशन या डज इट आल्सो सिग्निफाई समथिंग? इट सिग्निफाइज समथिंग। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज द रिलेशनशिप
या इट्स इफेक्ट रिलेशनशिप या इट्स इफेक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, हमने पढ़ा था जो प्राइस ऑफ कमोडिटी होती है दैट इज अ नेगेटिव फंक्शन। अगर प्राइस कम होएगा तो हम क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, कम फॉरगेट इट। अगर प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, करेक्ट। प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड increases. So this is an inverse relation. Inverse relation का सबसे बेस्ट मैकेनिज्म क्या होता है? It is shown with a minus sign. इनकम, इनकम जब बढ़ती है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। So this is known as a direct relation. This is signified by the plus sign. So if you see, these plus and minuses are only depicted over here. ठीक है, these are just if you want to understand why the equation is the way the equation is, but there is no they're not wanting to test do you know why it is a plus or a minus. They are just wanting to know, do you know what a demand equation is? ठीक है सर, let me know if यहाँ तक we are clear. So what does this signify? The equation says something in terms of maths. Let us interpret it in terms of basic economics. एक मिनट, हाँ। So basic economics में what does it say? Here I stands for consumers income in 1000. So what does minus 5p cornetos say? It says that for every 1 rupee increase in price of cornetos, the quantity demanded falls by 5 packets, showing an inverse relationship between price and demand. We know price and demand as an inverse relationship. अब इन्होंने क्या बता दिया है? हमने पहले तो बस ऊपर ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी थी कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम हो जाएगी। इन अलजेब्रा व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव क्वांटिफाइड इट कि अब कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना क्वांटिटी कम होएगा। अब इन्होंने बोल दिया है कि अगर 1 रुपी इंक्रीज होता है तो 5 पैकेट से डिमांड कम हो जाता है। तो हियर इट इज सेइंग एवरी 1 रुपी इंक्रीज reduces the demand by 5 packets. ठीक है, that is why it has an inverse relationship. Now if we come on income, similarly we can interpret similarly. इनकम में अगर हम बोले, वी नो इनकम इज इन टर्म्स ऑफ 1000, तो एवरी 1000 रुपीज अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो ये जो इसका कोएफिशिएंट है 0.4 से हमारा डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए। ठीक है सर, डिड वी अंडरस्टैंड दिस? सिमिलरली इफ वी सी प्राइस ऑफ लेज, प्राइस ऑफ लेज ओवर हेयर अगर 1 रुपी से बढ़ जाता है, इफ प्राइस increases by 1 rupee, जो क्वांटिटी डिमांडेड होएगी दैट विल फॉल बाय 3 पैकेट्स। व्हाई विल इट फॉल? 1 बिकॉज इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा सर इनवर्स क्या, सर कंफ्यूज हो रहे हैं, द बेस्ट इज टू लुक एट द इक्वेशन। एट द एंड इट विल ऑल बी टेस्टेड इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, है ना। तो आप इक्वेशन पे देख लो, इक्वेशन में माइनस आ रहा है तो माइनस सेज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, बट सर फॉर एग्जाम्पल इफ एवरीथिंग इज जीरो, हाँ, इफ एवरीथिंग इज जीरो, हमने सब कुछ जीरो कर दिया है, ये भी जीरो, प्राइस ऑफ कॉर्नेटोस भी जीरो हो गया, इनकम भी जीरो होगी, लेज का जो प्राइस है वो भी जीरो हो गया। बट व्हाट इज दिस 120? 120 का क्या सिग्निफिकेंस है? 120 का सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। इफ द चिप्स पैकेट वाज फॉर फ्री, कि प्राइस जीरो हो गया है, इफ इट इज फॉर फ्री कंज्यूमर्स वुड डिमांड 120 पैकेट्स ऑफ चिप्स कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स जैसे अब इनकम बोल दो, बाकी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो सब अगर आपको सेम रखना है, अनचेंज रखना है, क्योंकि व्हेनेवर वी आर अंडरस्टैंडिंग वी विल अंडरस्टैंड इन आइसोलेशन कि अगर इसका क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा ऑन डिमांड, इसका क्या इंपैक्ट होगा डिमांड, सबका एक मिक्स इंपैक्ट होगा। टू अंडरस्टैंड वन इंपैक्ट विल हैव टू रीड इट ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। तो यही अगर प्राइस ऑफ कॉर्नेटोज एकदम जीरो हो जाए, फ्री के लिए हो जाए, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होएगी फ्री में, वी वुड वांट 120 पैकेट्स ऑफ चिप्स। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एन इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज लाइक अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, इतना नहीं समझना है, बस आपने ये समझना है कि व्हेन प्राइस इज जीरो, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, तो व्हाट इज द क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड, दैट इज 120 पैकेट। ठीक है सर, समझ में आ गया। एंड वी वर ऑल्सो एबल टू इंटरप्रेट अदर फैक्टर्स। हमने इनकम इंटरप्रेट कर ली, प्राइस ऑफ लेज इंटरप्रेट कर लिया, प्राइस ऑफ कॉर्नेटोज इंटरप्रेट कर दिया। माय वन क्वेश्चन, चलो इन्होंने नीचे ही दे दिया क्वेश्चन, इसमें नाउ लेट अस वी नो this is the equation, correct? Quantity demanded is 120 minus 5
price of cornetos plus 0.4 of income minus 3 price of lays. ठीक है सर. अब now there is this equation, there is this question कि if the price of cornetos given is 30, income is 80,000 and the price of lays is 25, so what would be the quantity that we would demand? There is nothing complex in this, हमें बस वो values substitute करनी है. ठीक है. Price of cornetos is 30, so 120 minus 5 into 30 plus 0.4, we know जो income है that is in thousands, so 80,000 डिवाइडेड बाय 1000 ताकि हमें पता चल जाए इन एब्सोल्यूट फिगर्स कितना है ना. -3 प्राइस ऑफ लेस कितना है यहाँ पे 25, प्राइस ऑफ लेस इज 25. इसको बस हमने सॉल्व करना है और आंसर दे देना है. ठीक है सर. we'll calculate it using the calculator, obviously we are allowed, so we will use 120 minus 150 plus this is 80,000 divided by 1000, 80 into 0.4 minus 3 into 25 is minus 75. This is 120 minus 150 plus 32 minus 75. एक मिनट, क्वेश्चन गलत तो नहीं है ये? -73 कैसे आ सकता है? 1 मिनट, एक करेक्शन हो गया. तो प्राइस ऑफ लेज करेक्ट. हेयर यहाँ पे जो प्राइस ऑफ लेज होगा दैट वुड बी प्लस. क्यों? बिकॉज लेज इज अ सब्स्टिट्यूट गुड. ठीक है सर. तो यहाँ पे लेज वुड बी अ सब्स्टिट्यूट गुड. सिमिलरली इक्वेशन में भी हम वहाँ पे करेक्ट कर देंगे कि लेज इज अ सब्स्टिट्यूट गुड. अब व्हाट इज द रिवाइज वैल्यू? 120 माइनस 150, ठीक है, प्लस 32 प्लस 75, so this is 77. So what does 77 mean over here? 77 has many meanings over here. One, when the price of cornetos is 30 and income of consumer is 80,000 and price of lays is 25, है ना. करेक्ट. तो हमारा क्या क्वांटिटी डिमांडेड होगा? तो क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी 77 यूनिट्स या 77 पैकेट्स. तो समझ में आया ये? वर वी एबल टू इंटरप्रेट दैट इक्वेशन इन इकोनॉमिक या इन बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज? अगर आप ये क्वेश्चन भी आप ड्रॉप कर दो, ये प्लस माइनस का साइन, यू फॉरगेट इट, बट वर यू एबल टू इंटरप्रेट इट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, what is the relationship between price and demand, what is the relationship between demand and complementary good, demand and substitute good, demand and income. Question can come in any way. It can be a numeric question, it can be a theoretical question. The institute does not make any blip in the question formulation, है ना. तो मेरा हो सकता है कुछ question was वो साइन गलत हो गया था, but keeping that aside, were you able to understand the concept of how quantity demanded is affected by various factors? पहले हम singularly effect देख रहे थे of price, of income, of complementary good या substitute good. अब हमने cumulatively देखा. तो ये समझ में आया या नहीं? Please let me know that. Let me know. तो यहाँ पे what is the answer? The answer is 77 units, 77 packets. तो सर हाउ विल द पेपर काउंट? पेपर में 3 ऑप्शन होंगे, ए बी सी. तो यहाँ पे हो सकता है 77 इज द आंसर. वहाँ पे जैसे आंसर था -73, वो भी हो सकता है, बट क्वांटिटी डिमांडेड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना. तो 73 हो गया एंड देयर विल बी अनदर रैंडम ऑप्शन 150 हो गया कि आप कोई गलती करो और वही आपका ऑप्शन भी आ जाएगा. तो द इंस्टीट्यूट creates MCQs very thoughtfully. One, there are no mistakes in the question, and at the same time, if you miscalculate a step, आपको वो भी आंसर मिल जाएगा MCQ में.
तो वो एक डिस्ट्रैक्टर होता है, वो एक ट्रैप होता है कि आप वो वाला आंसर ना देख लो, रीचेक, रीसॉल्व एंड देन अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ दिस इज द आंसर। ठीक है सर, तो यहाँ पे वी आर श्योर कि यहाँ पे जो आंसर इज 77 पैकेट्स। समझ में आया? प्लीज लेट मी नो। ग्रेट, इट इज क्वाइट हैपनिंग। ग्रेट। ठीक है सर, अब व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड नाउ? हमने डिमांड इक्वेशन तक पढ़ लिया था ना? व्हाट इज डिमांड इक्वेशन? वही जो डिमांड की डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। अब इकोनॉमिस्ट डिड नॉट जस्ट वेट ऑन मैथ्स, दे वेंट अ स्टेप फर्दर। इन्होंने बोला इसको हम ग्राफिकली भी दिखाएंगे। ग्राफिकली मतलब वाया अ ग्राफ। तो इससे हमें समझ में आता है व्हाट इज अ डिमांड कर्व। ठीक है सर, व्हाट डू वी मीन बाय अ डिमांड कर्व? Demand curve is nothing but graphical representation of the demand equation between two variable factors. तो जो हमने इक्वेशन में पढ़ा, जो डिमांड फंक्शन में पढ़ा, जो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा, ऑल दैट एवरीथिंग क्यूमुलेटेड, अगर हम उसको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में पढ़े, दैट इज नोन एज अ डिमांड कर्व। ठीक है सर, समझ में आता है? So if you see how can we show an inverse relationship between two factors is through a negative line, through a negatively sloped line. So this is the demand curve जहाँ पे we reflect price and where we reflect quantity. So if we just try to interpret this graph, कैसे कर सकते हैं? When the price of a commodity increases from 30 to 50, तो पहले 30 पे कितना कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे थे? हम 10 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे। बट जैसे ही ये प्राइस वेंट अप टू 50, हम नीचे आ गए और हमने बोला भाई हमारा काम 8 क्वांटिटीज में ही हो जाएगा, हमें और कंज्यूम नहीं करना है क्योंकि हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है ना? दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगा। The question is why is the curve straight? Correct. So why the curve is straight? This is just for simplicity basis. हम कर्व को ऐसे भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट. This can also be 1 minute. A curve can also be shown like this, but it is just for simplicity basis कि we show a straight line. क्योंकि आप अगर यहाँ पर भी देखोगे तो 30 if we would have taken over here 30 and 10, but यही if the price goes up lesser amount 8 and 50. So it is just for convenience that we show a curve in the form of a straight line, because at the end what are we wanting to understand? We are not sitting here to what we are here sitting here for is to understand the relationship between price and demand. So price and demand का बीच में क्या relationship है? This is best understood through a straight line. ठीक है सर, do we understand that? Please let me know. Correct, correct. ठीक है सर, so this was an example I wanted to talk on OS chips, but we took the example of Cornitos chips, so this is one or the same. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. So what do we mean now by the slope of a demand curve? Slope of a demand curve is known as the steepness of the curve, कि ये कितना steep है. अब demand curves can be of different types. Correct. Let me take this. अब हमने पढ़ा यहाँ पे this is a demand curve. One way is this. There is another type of a demand curve जहाँ पे the demand curve is like this. Sorry, it is a bit flatter. There is another case जहाँ पे the demand curve is more flat. So although all these demand curves are negatively sloped, negatively sloped क्यों है समझ में आ गया हमें? Why are they negatively sloped? Because of the inverse relation they have. ठीक है, we understood why is it negatively sloped, because of the inverse relation it has. ठीक है, at the same time if you, तो ठीक है,
school है. This is the inverse relationship that it has. That is why it is negatively sloped. But now comes into question one thing. What is the slope? The slope is considered to be the steepness. अब कितना steep है? Is it this steep? इतना steep है या is इतना steep है? क्योंकि this goes to a flatter side. तो यहाँ पे there is a concept that comes into account, that is steepness of a graph or slope of the demand curve. So how can we understand what is the slope of a demand curve? It is the ratio of vertical change to the horizontal change. Vertical change, horizontal change is change in quantity demanded divided by the change in price. So if we want to understand slope, slope is nothing but the change in quantity demanded due to change in price. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, if you see this in, if you take this into consideration, one is this, then comes this. अब यहाँ पे आप देखोगे the rate of change over here is very less, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, but at the same time if you see over here, ये है एक, if the price change is very less, though यहाँ पे the quantity demanded will reduce, तो यहाँ पे जो rate of change है वो ज़्यादा है. Did we understand this? So it is very important for us consumers and for economists, for business firms also to understand कि what is the effect of price on quantity demanded. हमने blanket statement तो ये दे दिया है कि price has an inverse relationship on demand, but how much? How much effect? How much effect is given by slope? Is given by steepness, or in other words, how sensitive is demand with regard to price. कि अगर प्राइस थोड़ा भी चेंज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, ये बहुत मिनिस्क्यूल चेंज होता है, कम चेंज होता है. तो वी अंडरस्टैंड दैट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व. ठीक है सर, डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लोप एंड हम स्लोप क्यों पढ़ रहे हैं? लेट मी नो. इट्स ऑलमोस्ट बीन एन आवर. प्लीज लेट मी नो अगर आपको समझ में आ रहा हो. अ थम्स अप और अ येस इन द चैट बॉक्स will help, ताकि समझ में आ जाएगा कि what I am saying we're able to understand. क्योंकि the examples that we took were very basic to understand. We fail to know that economics or whatever concepts that we are understanding in finance is not something very far-fetched. It is prevalent in our everyday lives. हम we are हम घिरे हुए हैं उन चीज़ों से. We do not even realize that, है ना? So yes, there is one thumbs up in the chat. I hope he is doing it on behalf of everyone, है ना? So great. चलो चलो great. आगे बढ़ते हैं. स्लोप का हमें समझ में आ गया है. ठीक है सर, दिस इज स्लोप. इस जो हमने स्लोप की बात करी थी ना, सेंसिटिविटी, हाउ मच इफेक्ट डज इट हैव, स्टीपनेस की बात करी थी. हम व्हेन वी टॉक इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वी कॉल इट, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इलास्टिसिटी. Elasticity, that is how elastic is the demand. How elastic is the demand in terms of quantity demanded, कि अगर प्राइस चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा या मिनिस्क्यूल थोड़ा ही इफेक्ट होगा. तो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी is also known as slope, also gives us the change in quantity demanded divided by change in price. ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल जो हमने पहले ही लिया था कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 50,
जब यहाँ पे 30 to 50 प्राइस इंक्रीज हुआ था यहाँ पे, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो रिड्यूस हो गई थी फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स, है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट इज द स्लोप इज ऑफ -10 क्वांटिटीज। अब द क्वेश्चन इज व्हाई माइनस? इट कम्स बैक अगेन, why minus? Because it is a downward sloping curve. It shows an inverse relationship between price and demand. ठीक है सर। अब आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। when we are comparing these slopes या elasticities या steepness in percentage form, ताकि वो बहुत ही easy हो जाएगा to talk in terms of economics, in terms of English language also, बहुत easy हो जाता है to compare when it comes in a mathematical format, in percentage format, तो उसको हम बोलते हैं elasticity. But it is the same thing, it is talking about steepness, it is talking about slope. ठीक है, it is talking about the rate of change of what? Of demand basis price. ठीक है। सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज सेंसिटिविटी। तो इफ क्वांटिटी डिमांडेड का जो हमने ऊपर इक्वेशन पढ़ा था, इफ वी टेक इनकम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक साइड, एक टाइम के लिए हम इनको साइड पे रख दें, एंड इफ वी ओनली टेक द इंटरसेप्ट जो 120 यूनिट्स थे, पैकेट्स थे, एंड द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑन क्वांटिटी ऑफ कॉर्नेटोज, तो क्या इक्वेशन बनती है? इट इज दिस। तो क्वांटिटी डिमांडेड एट एनी पॉइंट इन टाइम would be 120 minus 5 price of cornetos. तो here जो इसका कोएफिशिएंट होता है ना, that is known as the slope. ठीक है। सो द स्लोप ओवर हेयर इज -5। अगर आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं करनी है, या आपको स्लोप अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यू कैन डायरेक्टली सी इट इज ऑब्जर्वेबल ओवर हेयर द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट यू आर फाइंडिंग, द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट यू आर फाइंडिंग, व्हाट यू आर वांटिंग टू फाइंड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉर्नेटोज। तो कॉर्नेटोज का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होएगा ऑफ प्राइस, दिस इज द स्लोप। ठीक है। Here the slope is -5. Now if the price is 20, quantity demanded becomes 120 minus 5 into 20 is 20 packets. तो अब हमारे पास दो सिनेरियोज है, one when the price is 1 and one when the price is 20, what is the quantity that is demanded is 20 packets, है ना? एंड वन वी कैन टेक अनदर एग्जांपल कि व्हेन द प्राइस चेंजेस, तो हमें कितनी क्वांटिटी हम इसकी डिमांड करेंगे। व्हेन वी डू दिस, व्हेन वी कंपेयर क्वांटिटी बेसिस, वी अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज स्लोप into the price of the commodity divided by the quantity of the commodity. This is a very easy formula if you want to talk in terms of formula. Varna, we know what is elasticity. It is the steepness of the demand curve. कि when the price changes, quantity कितना change हो जाएगा। So it is the steepness, correct, and it is also helping in understanding what is the sensitivity of the quantity demanded. ठीक है सर। इलास्टिसिटी इज व्हाट? इलास्टिसिटी इज जो स्लोप था, -5 यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, -5 जो इसका कोएफिशिएंट होता है, इनटू क्वांटिटी डिमांडेड इज 20 एंड प्राइस हमें पता है इज 20, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हुआ? इज -5। ठीक है सर। दिस मीन्स, अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। दिस मीन्स दैट इफ द प्राइस ऑफ कॉर्नेटोस चिप्स इंक्रीजेस बाय 1%, द क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय 5%। हमें पहले पता था कि व्हेन प्राइस राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। अब कितना होगा? दैट वी कैन डू आइदर इन यूनिट्स or the best would be in percentage form. To understand, percentage is one of the best mathematical computation. अगर आपको किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है, अगर आपने परसेंटेजेस में कम्युनिकेट किया ना, तो बहुत ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए दिस कॉन्सेप्ट केम ऑफ इलास्टिसिटी, वरना स्लोप से भी हो रहा था। स्लोप से हम बोलते हैं कि 20 पैकेट्स चेंज होएगा, अगर प्राइस चेंज होएगा तो इससे 20 पैकेट्स चेंज होंगे, बट इससे वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। व्हेन इलास्टिसिटी कम्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, तो परसेंटेज में बात होती है। तो व्हेन अ 1% चेंज इन प्राइस हैपेंस, 5% चेंज हैपेंस इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है सर। वही वाइब इलास्टिसिटी, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी इन परसेंटेज टर्म्स, एल्स वी वुड हैव बीन कैलकुलेटिंग नंबर्स, हम नंबर कैलकुलेशन में ही रह जाते हैं। दिस जस्ट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट और फॉर्मलाइज द स्लोप का कॉन्सेप्ट।
So elasticity removes the effect of units, making it comparable. So when we talk about elasticity, it is unit free. उसके कोई units नहीं होते. It is only in percentage form. But when we are talking otherwise, जब हम units की बात कर रहे हैं, ऊपर भी जो हमारा example था, हमने 77 units या 77 packets की बात करी थी. अब हम बोले कि sir, when the price is 30, income is 80,000, and when the price of a substitute good is 25, then quantity demanded is 77 packets. तो कितना haphazard feel हो रहा है. बट यही अगर आप बोलो कि when the price changes by 1%, the quantity demanded changes by 5%. है ना? तो this is much more simpler to understand. So that is why the concept of elasticity came, and it is one of the most important and fundamental concepts. ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं. We understood what is did we understand what is elasticity, what is slope? Let me know. I know कहीं पे आज भी दिवाली बन रही है, but yes. Shall we move ahead? Great. So now an example comes. Quantity demanded is 120 minus 5 of price of the commodity. ठीक है. Case 1, when the price is 10, what will be the quantity demanded? We can easily calculate. अगर हम इसको calculate करें, what is the demand equation? Demand equation is 120 minus 5 into price. हमने case 1 लिया, 120 minus 5. What is the price over here? 10. तो ये हुआ 70. 2 में 120 माइनस प्राइस क्या है इसमें 15. 5 इंटू 15, 5 इंटू 15, 75 माइनस 120, 45. ठीक है. 3 120 माइनस 5 इंटू व्हाट इज द प्राइस नाउ? द प्राइस इज 20. 100 हो गया. ये 120 माइनस 100 इज 20. ठीक है सर. तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड हाउ क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद चेंज इन प्राइस. ठीक है. नाउ दे आर वांटिंग टू नो कि वी कैलकुलेट द इलास्टिसिटी. अब व्हाट इज इलास्टिसिटी वी अंडरस्टूड, उसका एक फॉर्मूला भी है. इलास्टिसिटी, व्हाट डिड वी लर्न फॉर्मूला में? स्लोप इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ठीक है सर. व्हाट इज द स्लोप? द स्लोप इज द कोएफिशिएंट. यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट? -5, नॉट 5, -5. तो -5. फर्स्ट केस में प्राइस वाज 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज 70. तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, when price is 10, quantity demanded is 70, तो accordingly हम calculate कर लेंगे what is the slope. 10 divided by 70 into 5 is minus 0.714. Let me recheck. 10 divided by 70 into 5 is minus 7.14. Similarly, this was for case 1. For case 2, minus 5 into when the price was 15, this was 45. So 15 divided by 45 into 5 is minus 1.66. And third case, when the price was 20, quantity demanded was 20. So this is minus 5. Okay. Now the concept comes कि what is इलास्टिक, व्हाट इज इनइलास्टिक एंड व्हाट इज यूनिट इलास्टिक. क्योंकि इसका नाम क्या है? इलास्टिसिटी. बट व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इलास्टिसिटी? इनइलास्टिक और something whose elasticity is less than 1, we call it as inelastic. inelastic ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो बहुत हार्ड रबर बैंड होता है जो वो inelastic होता है. तो कंज्यूमर्स barely react to price changes. यहाँ पे जो elasticity होती है it is less than 1. तो जो चेंज ऑफ क्वांटिटी होगा वो कम होगा. प्राइस आप बढ़ा लो ज़्यादा, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो कम ही चेंज होगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी. एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स. फार्मास्यूटिकल्स या कोई जो ड्रग्स होते हैं या जो मेडिसिन होती हैं, आप उनके प्राइस अगर आप बढ़ा भी दोगे, बट दोज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो उनका प्राइस
का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्वांटिटी डिमांडेड पे, इसलिए दे आर नोन एज इनइलास्टिक गुड्स। ठीक है, फिर आता है इलास्टिक गुड्स। इलास्टिक गुड्स आर विच आर वेरी स्ट्रेची गुड्स, कि आप थोड़ा भी प्राइस चेंज कर दोगे तो कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स रिएक्ट शार्पली टू प्राइस हाइक्स, दिस इज नोन एज एन इलास्टिक डिमांड। जो इलास्टिक डिमांड होता है, इसका जो इलास्टिसिटी होती है, इट इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था -5 का ये वाला, तो यहाँ पे दिस इज नोन एज इलास्टिक डिमांड, दिस इज नोन एज इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, एक आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज जितना प्राइस आपने चेंज किया अकॉर्डिंगली उस हिसाब से ही क्वांटिटी भी चेंज होती है। तो ओवरऑल ना ही ज्यादा बढ़ता है ना ही कम होता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज गिवन बाय there is a proportionate change in price and quantity which is equal to 1. So when it is equivalent to 1, that is known as unitary elastic. समझ में आ जाता है? Let me know. We did 3 types of elasticity: inelastic demand, elastic demand, and unitary elastic demand. ठीक है सर, नाउ कम्स एक्सट्रीम्स ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम इनइलास्टिक की बात करें तो पूरा इनइलास्टिक डिमांड, या इलास्टिक डिमांड करें तो फुल्ली इलास्टिक डिमांड का क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड से हमें इतना समझ में आया कि आप प्राइस जितना थोड़ा भी चेंज करोगे तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज होगी, क्योंकि इट इज़ वेरी इलास्टिक, इट इज़ वेरी स्ट्रेची, द डिमांड इन इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रेची। तो यहाँ पे इफ प्राइस चेंजेस थोड़ा भी, यहाँ पे प्राइस इज 20, ये है क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे मुझे लग रहा है दिस विल बी, वेट, दिस इज प्राइस, सॉरी, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, सिमिलरली दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट डू वी मीन बाय इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज आप प्राइस 20 पे, द क्वांटिटी आपकी उतनी ही आप डिमांड है, आप उतनी ही करते रहोगे, आप बढ़ा भी दोगे 100 to 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, बट जैसे आपने अगर प्राइस बढ़ाया या कम किया, थोड़ा भी चेंज किया, तो जो डिमांड है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस आपने थोड़ा भी बढ़ाया तो क्वांटिटी माइट कोलैप्स टू जीरो, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो इट इज परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा भी चेंज इन प्राइस will knock off the entire demand. ठीक है, तो business firms when they are setting price for their commodities should be very vigilant of the fact कि उनका जो commodity है, how is it viewed by the consumers, is it inelastic उनके लिए या is it elastic उनके लिए, उसके हिसाब से they price their commodities. Similarly, what do we mean by inelastic demand? Inelastic demand is आप प्राइस जितना भी चेंज कर लो, प्राइस यहाँ पे ले लो आप 50 रुपीज़, यहाँ पे फिर 100 रुपीज़, फिर यहाँ पे 150 रुपीज़, आप प्राइस जितना भी चेंज कर लो, 50 कर लो, 100 कर लो, 150 कर लो, जो 200 की क्वांटिटी है, क्वांटिटी वुड बी डिमांडेड वुड बी 200 ओनली, वो चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल जो मैंने दिया था फार्मास्यूटिकल्स, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जो डायबिटी पेशेंट्स अगर यूज कर रहे हैं इंसुलिन के शॉट्स, उनको अगर रिक्वायरमेंट है 2 शॉट्स एवरी डे की, तो वो 2 शॉट्स एवरी डे लेंगे ही लेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। दैट इज व्हाट वी मीन बाय परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक, वो चेंज ही नहीं होगा, प्राइस आप चेंज कर लो बट क्वांटिटी डिमांडेड वोंट चेंज। ठीक है, सो द इंटायर थिंग वी आर वांटिंग टू अंडरस्टैंड इज बेसिस डिमांड। ठीक है, इनकम का क्या इफेक्ट है डिमांड पे, प्राइस का क्या इफेक्ट है डिमांड पे, तो एवरीथिंग कम्स बैक टू डिमांड। ठीक है, सो जो हमने अभी पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिमांड का फॉर्मली अगर हम एक बार नोट से पढ़े, इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स बाय ओनली एट अ सर्टेन प्राइस, इवन अ टाइनी इंक्रीज इन द प्राइस मेक्स द डिमांड जीरो, तो एकदम वो जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होती है इन लोकल मंडीज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन लाइक टोमेटोज एंड पोटेटोज, आप जैसे हमारे यहाँ पे जैसे थर्सडे मार्केट या सैटरडे मार्केट्स होती है, आप अगर जाते हो, देर आर मेनी वेंडर्स दे आर सेलिंग टोमेटोज। अगर एक वेंडर ने बोला कि 25 का प्राइस है, कोई दूसरा बोल रहा है 30, कोई 30 वाली से तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि 25 वी नो इज द एस्टैब्लिश प्राइस, सब 25 में ही दे रहे हैं, एवरी वेंडर ओवर देयर इज सेलिंग फॉर ₹25। बट अगर किसी ने 30 बोले, थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज किया, जो क्वांटिटी डिमांड होएगी वो वाइप ऑफ हो जाएगी, उससे कोई लेगा ही नहीं उस वेंडर से। ठीक है, अ फार्मर कैन नॉट सेल अबव द प्रिवेलिंग मंडी प्राइस बिकॉज बायर्स विल बाय इट फ्रॉम अनदर सेलर। तो अगर वो वेंडर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो किसी और वेंडर के पास चले जाएंगे, किसी और सेलर के पास चले जाएंगे।
ठीक है सर। अब आ जाता है वर्टिकल डिमांड कर्व। व्हाट डू वी मीन बाय वर्टिकल डिमांड कर्व? इट मीन्स दैट पीपल बाय द सेम क्वांटिटी रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, प्राइस 50 हो तो भी, प्राइस 100 हो तो भी, प्राइस अगर 150 हो तो भी, द क्वांटिटी डिमांडेड वोंट चेंज एंड इट वुड बी 200 यूनिट्स। ठीक है। एग्जाम्पल, लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, इवन इफ द प्राइसेस राइज, पेशेंट्स स्टिल नीड द सेम अमाउंट ऑफ डोजेज। जो हमने जैसे बोला था, इफ इन अ डे अ पेशेंट नीड्स 2 इंसुलिन शॉट्स, तो उनको वो 2 शॉट्स लेने ही पड़ेंगे, दैट कैन नॉट चेंज, है ना। एंड अनदर एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिसिटी फॉर बेसिक हाउस होल्ड यूज। जो स्मॉल या एसेंशियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो जैसे फैन अगर यूज कर रहे हैं हम, लाइट्स अगर यूज कर रहे हैं, तो बेसिक एक कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हमें चाहिए ही होगा ये। तो इसके लिए जो हमारा डिमांड होगा दैट वुड बी इनलास्टिक। ठीक है। इट डज नॉट चेंज इवन विद चेंज इन प्राइस। ठीक है सर, डिड वी अंडरस्टैंड? प्लीज लेट मी नो। तो अभी तक हमने क्या समझा? वी अंडरस्टूड डिमांड, then we understood a demand function, then we understood demand equation, then we understood a demand curve। ठीक है। डिमांड कर्व के बाद हमने क्या समझा? डिमांड कर्व के बाद हमने स्लोप समझा। we understood slope of a demand curve। slope tells us about the steepness, और उस स्टीपनेस से हमें क्या समझ में आता है? द रेट ऑफ चेंज। वी अंडरस्टूड इलास्टिसिटी उससे। तो इलास्टिसिटी, एंड फिर इलास्टिसिटी के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, है ना। अब आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ठीक है सर, जो हम ये इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, हाउ इज इट अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, और उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? लेट मी नो इफ एवरीवन इज हेयर इन द चैट। यस, समझ में आ रहा है, ग्रेट। So now we are understanding factors affecting elasticity. Hmm? Yes, yes, great. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट नाउ, उससे पहले ना आई एम थिंकिंग लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिडिक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को। हम फैक्टर्स अफेक्टिंग बाद में कर लेते हैं। अच्छा, दिस इज ओनली द टॉपिक, ठीक है। यही टॉपिक, द प्रिडिक्टर्स ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी एंड इट्स इफेक्ट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन रिस्पॉन्सिवनेस। बेसिकली व्हाट इज इट ट्राइंग टू से कि व्हाट आर द प्रिडिक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी। कि अगर ऐसा हुआ तो इलास्टिसिटी कैसे होएगी, ज़्यादा होएगी, कम होएगी, अगर ऐसे हुआ तो क्या होएगा, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। अब समझते हैं वन बाय वन। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया था, कॉर्नेटोज का एग्जांपल लिया था। वी टुक द एग्जांपल ऑफ कॉर्नेटोज, है ना। वी टुक द एग्जांपल्स ऑफ कॉर्नेटोज। अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है, वी स्विच टू डोरेटोज, वी स्विच टू लेज। नहीं है अगर ये, वी स्विच टू अनदर ब्रांड। So there are different brands of chips that are there. These are all substitutes. ठीक है, these are all substitute goods. So the availability of close substitutes increases elasticity because consumers readily switch to alternatives when price change. तो जब Cornettos का प्राइस बढ़ जाता है, तो now we have three options to look at. हम या तो Doritos to switch कर सकते हैं, या Lay's में switch कर सकते हैं, या कुरकुरे में switch कर सकते हैं। तो there are different, if there are different alternatives or substitutes available, तो हम उसमें switch कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सब्सटीट्यूट गुड्स लीड टू इंक्रीज्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, इंक्रीज इलास्टिसिटी का क्या मतलब है कि अगर कॉर्नेटोस का पैकेट का चिप्स का जो प्राइस है, अगर वो थोड़ा भी बढ़ जाए, तो एवरीवन विल शिफ्ट, क्वांटिटी डिमांड विल ड्रास्टिकली फॉल, वी विल स्विच टू डिफरेंट चिप्स के पैकेट।
फिर आ जाता है द प्रोपोर्शन ऑफ बजट दैट इज स्पेंट ऑन गुड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स ऑक्यूपाइंग अ लार्जर बजट। तो अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो हमारा क्या बजट रहता है, बजटरी स्पेंट, बजटरी स्पेंडिंग। अब से फॉर एग्जाम्पल वी आर लुकिंग एट अ गुड से मैच स्टिक या मैच बॉक्स and another good or another service, say for example rent. Agar rental, and this is a 1 rupee thing, and say for example this is a 50,000 thing, अगर the price changes by 50%, बढ़ जाता है 1, तो 1.5 रुपीज़ ही ज़्यादा फ़र्क हुआ, बट इन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें सिर्फ 0.5 रुपीज़ बढ़ा है, बट अगर यही अगर 50% से ये बढ़ जाए तो इट लीड्स टू 75,000। तो किसके लिए जो डिमांड होएगी वुड बी मोर इलास्टिक, इसके लिए या इसके लिए? What do I mean by elasticity is if the price change of matchbox would affect you more, or the price change of rent would affect you more. Sir, obviously rent. Why rent? Because it is a big part of our budgetary spend. We're almost spending 50,000 on our rent. और अगर उसमें 50,000 में 50% इंक्रीज हो गया है तो और हमें आउटफ्लो करना पड़ रहा है ऑफ अमाउंट। वाइल अगर वी टेक मैच बॉक्स एज एन एग्जांपल, द बजटरी स्पेंड वुड बी वेरी मिनिस्क्यूल, अ 1 रुपी थिंग में यू कैन गेट अ मैच बॉक्स। अगर इसका 50% बढ़ जाता है तो ओवरऑल इसका जो प्राइस बढ़ा है इट इज जस्ट 1.5 रुपीज, है ना? तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी। The proportion of budget spent on goods also influences elasticity, as goods influencing a larger budget share tend to have more elastic demand. तो demand for rent would be more elastic. कल को अगर प्राइस बढ़ जाता है हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, हमें कोई दूसरा घर चाहिए होगा, हम कोई और घर देख लेंगे, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी बिग ऑफ आवर बजट स्पेंड। समझ में आता है? आगे बढ़ सकते हैं, लेट्स गो। फिर आता है नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी क्लासिफिकेशन। अब अ गुड इज अ नेसेसिटी और अ लग्जरी, दिस विल हैव टू अंडरस्टैंड। इफ इट इज अ नेसेसिटी, से फॉर एग्जांपल सॉल्ट, आपको चाहिए ही चाहिए, तो अगर उसका भी प्राइस चेंज हो जाता है यू विल स्टिल गो एंड बाय द सॉल्ट। हाउएवर इफ देयर इज अ लग्जरी आइटम, से फॉर एग्जांपल लग्जरी वॉच या अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट लाइक एनी इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रिज हो गया, फोन हो गया, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो यू वुड फील कि यार वी कैन डेफर द कंजम्पशन, हम बाद में भी खरीद सकते हैं, बट हम सॉल्ट को बाद में खरीद नहीं सकते क्योंकि दैट इज अ नेसेसिटी फॉर आवर सर्वाइवल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स इज ऑल्सो अ बिग डिटर्मिनेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, classification of goods, is it a necessity or is it a luxury? A necessity would have inelastic demand, क्योंकि आप प्राइस जितना भी चेंज कर लो हमें वो नेसेसिटी है, हमें वो लेना ही है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हाउएवर अ लग्जरी और अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट कि हम ले या ना ले इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस हैज अ मोर इलास्टिक डिमांड। ठीक है सर। फिर आ जाता है टाइम होराइजन। टाइम होराइजन also matters, as long run demand is generally more elastic than short term demand because consumers get more time to adjust behavior and substitute goods. अब say for example you know there is this increase in, जो हमने रेंटल की बात करी थी, रेंटल प्राइस राइज, जो हमने ये बात करी थी, करेक्ट? अब नाउ यू नो कल को आपका लैंडलॉर्ड आ जाता है एंड ही सेज गौतम आपका कल ही ये जो रेंटल एक्सपेंस है ये बढ़ जाएगा, वर्सेस ये आपको आता है एंड ही सेज आफ्टर 1 डे या आफ्टर 1 ईयर, व्हाट वुड बी योर मोस्ट नेचुरल रिस्पॉन्स टू इट? अगर 1 ईयर होएगा तो आप बोल दोगे कि यार लेट अस लुक फॉर सब्सटीट्यूट्स। अब 1 साल में हम दूसरे घर देख सकते हैं, वी लुक फॉर डिफरेंट हाउसेज, हम दूसरे घर देख सकते हैं जिसका रेंटल वुड बी लेस देन 50,000। हाउएवर जो यहाँ पे 1 डे में होगा यू विल हैव टू अग्री टू हिम कि यार ठीक है अगर आप कल ही चेंज करें तो हम आपको अभी पे कर देते हैं।
क्योंकि द टाइम फ्रेम इज वेरी शॉर्ट टू एडजस्ट योर बिहेवियर. आप चेंज नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू लुक बियॉन्ड योर रिसोर्सेज. तो जो शॉर्ट टर्म वांट्स होते हैं या जो शॉर्ट टर्म डिमांड होता है, दैट टेंड्स टू बी इनइलास्टिक, क्योंकि आप उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम फ्रेम. हाउएवर लॉन्ग टर्म डिमांड जो होता है, दैट टेंड्स टू बी इलास्टिक as you get more time to adjust. ठीक है सर. So now we were able to even understand what are the predictors of elasticity. हमने पढ़ा availability of substitutes, हमने पढ़ा proportion of budget spent, हमने पढ़ा is the commodity a necessity or is it a luxury, and what is the time horizon, is it immediate or is it in time to come, जैसे 1 year, a month, 2 months, 3 months ऐसे. ठीक है सर. अब let us take a break, I feel, है ना. Let me know. Let us take a break, and after the break we can come back and we'll understand more concepts on elasticity. What we understood right now was price elasticity, कि price का क्या impact होता है on demand. इसके बाद हम पढ़ेंगे what will be the effect of income. अगर हमारी income बढ़ जाती है तो demand पे क्या फर्क पड़ता है, अगर हमारी income कम हो जाती है उसका क्या effect होता है. क्रॉस इलास्टिसिटी, दूसरे प्रोडक्ट्स का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उसका हमारे डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा. वी नो द कॉन्सेप्ट ओवरऑल की, बट नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी कि कितना चेंज होएगा, परसेंटेज कितना चेंज होएगा, तो वो कैलकुलेशंस विल कम इनटू कॉन्टेक्स्ट. बट ओवरऑल इट इज द सेम जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी में पढ़ा था. एज इट इज वी कैन यूज द सेम फॉर्मूलाज फॉर इनकम इलास्टिसिटी एज वेल एज क्रॉस इलास्टिसिटी. ठीक है सर. एंड देन वील अंडरस्टैंड additional concepts. ठीक है. तो let us take a break. Let us take a 10-minute break and then resume. ठीक है. In case कोई भी queries हो, please add it in the chat box. I'll side by side I'll resolve it. Great. Thank you.
everyone. So welcome back. I hope we had a nice break. So before the break, we were able to understand about demand, about elasticity of demand, and the factors that affect elasticity of demand. So now let us move ahead. इसमें we'll understand what are the types of elasticities. Types of elasticities में there are basically three types of elasticities. That one is price elasticity, second is income elasticity, and third is cross elasticity. So if we want to understand it in just one word, we understood the impact of price change on demand. Now, if we want to understand the impact of income change on demand, that is known as income elasticity. कि हमारा इनकम पे क्या इफेक्ट होए, डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा इफ इनकम चेंजेस, इनकम अगर बढ़ जाए या इनकम अगर कम हो जाए तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट होगा, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी. एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ अ रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड कौन कौन से हमने पढ़े थे, एक सब्स्टिट्यूट पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड. तो उनका जो प्राइस चेंज हो जाता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द सेट गुड इन क्वेश्चन. वी नो द रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बट नाउ वी विल क्वांटिफाई इट. हम उसको नंबर टर्म्स में ले आएंगे कि कितना. ठीक है. सो सर, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? इट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम. वी हैड अंडरस्टूड कि व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी. जो हमने ऊपर अभी तक हम पढ़ रहे थे वाज प्राइस इलास्टिसिटी. तो प्राइस इलास्टिसिटी इज percentage change in, this is percentage change in price ठीक है सर. this is the main equation, price elasticity. अब when we substitute price with either income, this becomes income elasticity. If we substitute this income with some other good के price की some other जो price होता है उसका, that becomes cross elasticity. So concepts are very very similar. It is just when we are talking in respect of our own commodity, we are talking in respect of different commodities. ठीक है. Let us understand. So this is the percentage change in demand divided by the percentage change in income. तो income की change होने से demand पे क्या effect होता है? A positive income elasticity classifies goods as normal goods, while a negative income elasticity classifies a good as inferior good. तो जो हम income elasticity पढ़ते हैं, income elasticity is percentage change in income, sorry, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income. करेक्ट. अब इसका आंसर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है. बट इफ यू रिमेंबर, हमने पहले पढ़ा था कि राइज ऑफ इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स व्हेन इनकम राइजेस द डिमांड फॉर गुड आल्सो रिड्यूसेस. सर व्हाट डू यू मीन बाय कि सर डिमांड कम हो जाएगी किसी गुड की इफ वी आर इंक्रीजिंग इनकम? एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल फास्ट फूड. अगर आपकी इनकम से 10,000 है तो यू विल गो फॉर फास्ट फूड, क्योंकि फास्ट फूड है, इकोनॉमिक भी है, चीप भी है, यू गेट इट फास्ट, यू विल मूव अहेड. बट इफ यही अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, इट गोज टू 20,000, यू वुड वांट टू सब्सटीट्यूट दिस विद अ फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस. नहीं, वोंट यू वांट कि नाउ यू जस्ट डू नॉट फोकस ऑन फूड बट आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिले. आप खाना तो खा रहे हो बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस, द ऑरा इज आल्सो वेरी नाइस while you are dining, while you are having food. तो इफ यू अंडरस्टैंड, ऑल्दो आपकी इनकम बढ़ी 10,000 से, इनकम बढ़ी 20,000, बट जो फास्ट फूड की डिमांड है वो रिड्यूस हो गई. इफ यू अंडरस्टैंड, फास्ट फूड का जो डिमांड था दैट रिड्यूस्ड, बट एट द सेम टाइम फाइन डाइनिंग का जो है, फाइन डाइनिंग की जो डिमांड है दैट इंक्रीज्ड. तो इसकी इनकम इलास्टिसिटी वुड बी नेगेटिव क्योंकि दिस इज ऑल्सो इनवर्स, और इसकी इनकम इलास्टिसिटी वुड बी पॉजिटिव क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इनकम बढ़ी तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ी बट फास्ट फूड की क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस्ड.
तो दिस इज नोन एज अ नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और अगर किसी कमोडिटी की नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड। और अगर किसी प्रोडक्ट की इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल गुड, सिंपल। ठीक है, तो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड? वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ नॉर्मल गुड, व्हाट इज अ इंफीरियर गुड, व्हाट इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। एक बारी हम टेक्स्ट से भी पढ़ लेते हैं। The text says normal goods में there is positive income elasticity. Say for example luxury handbags. As income increases, we would want to spend on quality stuff. We would want to spend on luxury items. So here luxury items is a normal good. However, what is an inferior good? Inferior good is that has a negative income elasticity कि जब income बढ़ती है उसकी जो demand होती है of that said commodity that reduces. For example, instant noodles. Would you prefer instant noodles over a good experience of ramen? I would not. क्योंकि with increased income, you would want to elevate your dining experience. You would want to go in a authentic restaurant and eat better food. तो इसलिए जो instant noodles की जो आपकी demand थी वो reduce हो जाती है. So when this reduces, what do we call this? This becomes a inferior good. ठीक है सर, inferior good and it has negative income elasticity. हमने यहाँ तक समझ लिया व्हाट इज इलास्टिसिटी, हमने समझा प्राइस इलास्टिसिटी समझा। अब हमने समझा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी कैन आइदर बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाता है व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी? Cross elasticity, it is the percentage change in quantity demanded of one good divided by the percentage change in price of another good. क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वांटिटी और प्राइस देख रहे हैं दे आर ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल था सब्सटीट्यूट गुड्स का, हम देख रहे हैं कि कॉर्नेटोस चिप्स वर्सेस लेस चिप्स या डोरिटोस चिप्स या कॉर्नेटोस चिप्स वर्सेस साल्सा डिप। तो उनकी प्राइस चेंज के वजह से भी कॉर्नेटोस के चिप्स का डिमांड चेंज हो रहा है। So if there is positive cross price elasticity, this indicates the good is a substitute good. However, if there is negative cross price elasticity, that means that the good is a complementary good. Similar हम इसके भी notes बना लेते हैं. If cross price elasticity is either positive or negative, correct? If it is positive, it is considered to be a substitute good. And if it is negative, it is considered to be a complementary good. अब आता है सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई पॉजिटिव इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मींस सब्स्टिट्यूट गुड? व्हाई? क्योंकि हमने समझा था फॉर एग्जांपल इफ वी टेक डोरिटोज वर्सेस कॉर्नेटोज और हमारा क्या था, गुड इन क्वेश्चन वाज कॉर्नेटोज। इसमें इफ यू सी दिस इज से फॉर एग्जांपल अ 20 रुपी पैकेट एंड अ 20 रुपी पैकेट। अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है टू से 35 रुपीज, तो अब ये और ये रिलेटिवली चीपर नहीं हो गया? ये रिलेटिवली चीपर हो गया अब बिकॉज इट इज रिलेटिवली चीपर यू विल वांट टू इंक्रीज इट्स डिमांड। क्योंकि अब आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप डोरिटोज ले सकते हो या तो यू कैन गो फॉर कॉर्नेटोज। बट अब डोरिटोज का प्राइस बढ़ चुका है तो नाउ यू शिफ्टिंग योर डोरिटोज का डिमांड, जो आप पहले डोरिटोज में लेते, नाउ यू शिफ्टिंग योर डिमांड टू कॉर्नेटोज। तो इसलिए कॉर्नेटोज का भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो बिकॉज दिस हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप देयरफॉर इट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड, एंड बिकॉज इट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड, जो इसकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। Did we understand this? Similarly, we can interpret it for a complementary good कि अगर complementary good से for example salsa dip उसका प्राइस बढ़ जाता है तो कॉर्नेटोस की चिप्स का जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टुगेदर एज अ बंडल हमें अब ये जो कॉम्बो है वो हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो वी वुड रिड्यूस आवर डिमांड। बट दिस इज नॉट द केस इन डोरिटोज। लेट मी नो अगर ये समझ में आ रहा है। ग्रेट, response is nice, so that is quite good. Great.
तो अब आगे बढ़ते हैं. तो what did we understand? We understood income elasticity and we understood cross price elasticity. Note से positive cross price elasticity is substitute goods, iPhones versus Android phones. और आ जाता है negative price elasticity, for example complementary goods जैसे printers and ink cartridges. You cannot use one without the other. अगर आपके पास ink cartridges नहीं, you will not be able to use printers. बट यही अगर जो इंक कार्ट्रिजेज है उनका प्राइस बढ़ जाता है तो एज अ कॉम्बो जो प्रिंटर का जो सिस्टम है इंटायरली आपको वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा. दैट इज वाई यू वुड नॉट वांट टू परचेज दैट यू कुड हैव पहले. इसलिए इनकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है. समझ में आया? शैल वी मूव अहेड? अब आ जाता है अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. व्हाट इज सर इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? Substitution effect arises when a fall in a good's price makes it relatively cheaper than the alternatives, prompting consumers to substitute the goods towards the cheaper good. वही आप एग्जाम्पल ले लो, कॉर्नेटोज का एग्जाम्पल, डोरेटोज वर्सेस कॉर्नेटोज 2020 के थे ये. हमने पहले प्राइस राइज ले लिया था. यही अगर जो डोरेटोज के चिप्स है अगर दिस रिड्यूसेस टू 15 तो अब ये रिलेटिवली चीपर हो गया. तो जो आप पहले कॉर्नेटोज भी अगर आप खरीद रहे थे तो वो सारा अब आपका माइंड लगेगा कि यार काश मैं अब डोरिटोज ही ले लूं क्योंकि दैट इज चीपर. करेक्ट? तो इसलिए दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? बिकॉज द प्राइस चेंज, because of the price change it becomes relatively cheaper. It becomes relatively cheaper. So you substitute Doritos for Cornetos. कहाँ आप पहले Cornetos खरीदे थे और आपका मन Cornetos का था, but because now Doritos seems cheaper relatively क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया है, so now you would shift your Cornetos का भी demand to Doritos. So this is known as substitution effect. The demand for Cornetos has been substituted by the demand for Doritos. फिर आ जाता है इनकम इफेक्ट. व्हाट इज इनकम इफेक्ट? द इनकम इफेक्ट अराइजेज व्हेन अ प्राइस डिक्लाइन increases the consumer's real purchasing power, causing them to buy more of those goods. अब से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम वी ऑल्सो ब्रिंग इन टू अकाउंट इनकम. अब इनकम आपकी थी ₹1000. अब जब 1000 थी तो आपको कॉर्नेटोज लेने का मन था, आप कॉर्नेटोज ही खरीद रहे थे. हाँ, जब आपकी इनकम 1000 थी यू वर गोइंग फॉर कॉर्नेटोज. करेक्ट? बट अब आपने देखा कि रिलेटिवली ये तो चीपर हो गया है और ऑल्दो इनकम हैजंट चेंज्ड बट रिलेटिवली अगर आप फील करो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है. अब आप मोर पैकेट ऑफ डोरिटोज खरीद सकते हो देन द पैकेट्स ऑफ कॉर्नेटोज. तो व्हाट डज द इनकम इफेक्ट से? द इनकम इफेक्ट सेज कि बिकॉज ऑफ द प्राइस चेंज या प्राइस रिडक्शन बोल दो, because of this price reduction your real purchasing power this increases, this rises because of the price, because of the fall in price of Doritos. तो ये जो इनकम है ये इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज नोन एज इनकम इफेक्ट. तो हमने दो इफेक्ट्स पढ़े, एक हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक हमने पढ़ा इनकम इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. लेट मी नो अगर इसमें यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन. समझ में आ रहा है? ग्रेट, कूल, ठीक है. तो लेट अस मूव अहेड. हमने ये दोनों इफेक्ट्स भी पढ़ लिए हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जांपल. फॉर नॉर्मल गुड्स हमने पढ़ा था व्हाट आर नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स आर जिनकी इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव. For example, restaurant meals, as most people tend to eat out because often when they're eat out more often when their income rises. So when आपकी इनकम बढ़ जाती है, अगर किसी का सैलरी हाइक हो जाता है या किसी को बोनस मिल जाता है तो you would always want to celebrate. So because of that rise in income you would want to purchase or you would want to treat yourself well. That you purchase is a normal good because you purchase that good because of the rise of your income. And that is known as a normal good. The substitution and income effect reinforce one another to increase demand. हमने ये पढ़ा था कि प्राइस फॉल हुआ तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हुआ एंड एट द सेम टाइम इनकम इफेक्ट भी हुआ क्योंकि अब वो रिलेटिवली चीपर हुआ डोरिटोज
तो कॉर्नेटोज का भी जो डिमांड था वो सब्सटीट्यूट हो गया है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो आप और डोरिटोज भी खरीदने लग जाते। तो बोथ द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एज वेल एज द इनकम इफेक्ट रीइंफोर्स ईच अदर। ठीक है। फॉर इन्फीरियर गुड्स हाउएवर, इन्फीरियर गुड्स जैसे जेनरिक बेवरेजेस हो गए, या जैसे हम फास्ट फूड का एग्जांपल ले रहे थे, which people tend to buy less as their income rises. A rise in income causes consumer to buy less and not more. तो जैसे हमने फास्ट फूड का एग्जांपल लिया था या इंस्टेंट नूडल्स का एग्जांपल लिया था, तो मोर देर इज अ राइज इन इनकम यू वुड वांट टू परचेज लेस ऑफ इट, क्योंकि यू वुड वांट टू स्पेंड मोर ऑन क्वालिटी, यू वुड वांट टू स्पेंड मोर ऑन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो अगर ये होता है तो दिस इज नोन एज एन इंफीरियर गुड। ठीक है, तो सर ए आई हैव क्रिएटेड दिस टेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस डिक्रीज ऑन अ नॉर्मल गुड एज वेल एज ऑन एन इंफीरियर गुड। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है फॉर नॉर्मल गुड, एंड उसका डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है फॉर इंफीरियर गुड। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा है इट इज जस्ट अ स्मॉल सिनॉप्सिस ऑफ द इंटायर थिंग। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे होगा, इनकम इफेक्ट होगा कैसे होगा, तो ये यू रीड बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ताकि इवन यू हैव सम इंसेंटिव, देयर इज सम होमवर्क कि एटलीस्ट वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। ठीक है, दिस इज द सेम व्हाट वी हैड स्टडीड अबव। ठीक है, shall we move ahead? Great, great. चलो चलो, let's move ahead. अब there is another concept, although this is not in the core material in the prerequisites also, but there were questions pertaining to this. That is why I added this concept. So now the concept comes movement along the demand curve versus shift of the demand curve. Okay, sir, let us understand what do we mean by movement along the demand curve and what is shift of the demand curve. So movement along the demand curve, a movement along the demand curve happens when only price of the same good or service changes while all other factors like income, tastes and preferences remain the same. It shows change in quantity demanded. So I have created a graph, नीचे let us see. ये है द ग्राफ ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी सी at rupees 100 we consume 15 quantities of a specific commodity, 15 quantities of a specific commodity. जैसे ही इसका प्राइस रिड्यूस हो जाता है टू 80, हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है टू 20 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो अगर आप देखोगे पहले वी वर एट पॉइंट ए, है ना, बट नाउ ड्यू टू दिस चेंज इन प्राइस, ड्यू टू दिस चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वी कम टू पॉइंट बी। So this is known as a movement along the demand curve. Demand curve वही है, if you see वही demand curve है, अब बस the movement has changed. पहले हम A पे थे, now the movement has come to B. So this is movement along the same demand curve. Same demand curve. Did we understand this? What does the definition say? अगर हम definition पढ़े, it is happens only when the price of the same good or service changes while other factors remain constant. जो उसकी income है, जो price of substitute goods है, price of complementary goods है, या आपकी taste and preferences है, वो सब same है, only the price changes. जो यहाँ पे हुआ, the price changed from 100 to 80, so there was movement along the demand curve. ठीक है, एंड वी नो व्हाट इज अ डिमांड कर्व, अ डिमांड कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बस सिंपल। ठीक है, इफ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, if price decreases quantity demanded increases and there is a right or a downward movement along the demand curve. So let us understand this through a curve. हमने ये कर्व बनाया डिमांड कर्व, ठीक है, और हमने ये बनाया दिस इज अ डिमांड कर्व। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वी आर हेयर at say this is price and this is say quantity demanded. ठीक है सर, this is the normal this is a normal demand curve जो हमने बनाया, downward sloping because it shows the inverse relationship.
अब say for example at 100 we consume 10 quantities of a commodity. जैसे ही price increases, say now the price increases to 130. जैसे ही price increased to 130, the quantity demanded fell, and this fell to say for example say 60. अब ये जो increase हुआ या decrease हुआ, this was shown on the same demand curve. First we were at point A, now we are at point C. First we were at point A, now we are at point C. ठीक है, so this change it is shown on the same demand curve, so this is known as movement along the demand curve. ठीक है सर, if you see this is a leftward shift, a leftward movement. लेफ्ट बोल दो या अप मूवमेंट बोल दो, तो हमने यही पढ़ा कि इफ द प्राइस इंक्रीजेज, जो कि यहाँ पे हुआ, प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 130, क्या हुआ, अ लेफ्ट मूवमेंट हुआ. द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, करेक्ट, इफ यू सी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज्ड फ्रॉम 100, सॉरी दिस वर 100 कमोडिटीज. ठीक है, 100 पे हम 100 कंज्यूम कर रहे थे, जैसे ही प्राइस कम हुआ तो यहाँ पे हमने 60 किया. ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, देयर इज अ लेफ्ट और एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स फ्रॉम 100 टू 80, पीपल बाय मोर ऑफ द कॉफी, दिस इज मूवमेंट अलोंग द कर्व. हमने वही पढ़ा, 100 से 80 हो गया कॉफ़ी का प्राइस, तो कहाँ हम पहले 15 कंज्यूम कर रहे थे, अब हम 20 कंज्यूम करेंगे, 20 पाउचेज ऑफ द सेम कॉफ़ी. दिस इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. इसमें ना ही वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम, ना ही वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, ना ही वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सटीट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अ प्योर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. ठीक है, अब आता है अब आता है shift in demand curve. What is shift of the demand curve? A shift means the entire demand curve moves to a new position because something other than price has changed. Price वही है, but something other has changed. Other क्या था, हमने other factors क्या पढ़े थे, इनकम, सब्सटीट्यूट के प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस. आपकी हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ही चेंज हो गए हो कि अभी हमें वो कमोडिटी ही नहीं चाहिए, तो इसलिए एज इट इज द डिमांड जो ग्राफ है दैट ओनली शिफ्ट्स. दिस इज नोन एज अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व एंड दिस इज नोन एज चेंज इन डिमांड. So what do we mean by change in demand? If there is an increase in demand, there is a rightward shift and consumers buy more. If there is an increase in demand, price वो ही रहा है, but there is an increase in demand, so this is known as a shift. A rightward shift happens. ये था हमारा जो नॉर्मल डिमांड कर्व था, बट बिकॉज समथिंग हैज चेंज्ड अदर देन प्राइस, हो सकता है इनकम इंक्रीज्ड, हो सकता है सब्सटीट्यूट गुड के जो प्राइस था वो इंक्रीज, तो ये रिलेटिवली चीपर हो गया, तो हम इसको और डिमांड कर रहे हैं. तो दैट इज वाई ये जो हुआ, द इंटायर कर्व ओनली शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो दिस इज नोन अ शिफ्ट ऑफ अ डिमांड कर्व. ठीक है, whenever there is an increase in demand, there is a rightward shift and consumers buy more of it. What are the factors that cause a demand? What are the factors that cause a shift in the demand? Change in income, change in taste preferences, or change in price of related goods. Beware, हम यहाँ पे price की बात नहीं कर रहे हैं. Price की बात नहीं कर रहे हैं. Why so? Because price, whenever we talk about price, it comes in movement along the demand curve. It does not come in shift of the demand curve. ठीक है सर. When we talk about price, ये प्राइस का इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है, एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस कम हेयर. ठीक है सर, डिड वी अंडरस्टैंड? अब वही कॉफी वाला एग्जांपल इफ वी अंडरस्टैंड, उसके लिए क्या रहेगा, इफ पीपल्स इनकम इंक्रीजेस दे मे बाई मोर कॉफी एट द सेम प्राइस, देयरफॉर द डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड. तो आपकी इनकम बढ़ी, एट द सेम टाइम प्राइस तो सेम ही रहा, जो प्राइस था वो 80 का 100 का 100 ही रहा, वो 80 नहीं हुआ, वो नीचे नहीं आया, बट 100 ही रहा. बट आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आपको एक बड़ी ऐसी जॉब मिल गई, या यू गॉट एन इंसेंटिव, या देयर वाज सम बोनस दैट वाज डिक्लेयर्ड, आपकी इनकम बढ़ गई.
So now because of that income, you are able to buy more of the same amount of coffee. So that is why there is a shift of the demand curve. Okay, sir. So now this is known as a shift of a demand curve. A very important thing versus movement along the curve versus shift is happens because of price. Happens because of price. Happens because of factors अदर देन प्राइस. यहाँ पे हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं और फैक्टर्स अदर देन प्राइस कर रहे हैं. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस, हियर वी आर टॉकिंग फैक्टर्स अदर देन प्राइस. यहाँ पे व्हेन द डिमांड चेंजेस तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. दिस इज अ टेक्निकल टर्म, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. हाउएवर जब यहाँ पे डिमांड चेंज हो जाता है इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड. ठीक है सर. तो दिस इज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. ठीक है. यहाँ पे द सेम डिमांड कर्व, but here we have a new demand curve altogether. ठीक है सर. डिड वी अंडरस्टैंड दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसके बेसिस पे एमसीक्यूज आए हुए हैं. दैट इज व्हाई आई कवर्ड दिस, ऑल्दो दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्री रिक्विजिट्स का रीडिंग, बट आई एडेड दिस टॉपिक. ठीक है सर. So now if you see na how the entire chapter had been divided, I'll share. So the entire chapter, if you see, जैसे मैंने बताया था, economics had been divided ऐसे. माइक्रो एंड मैक्रो. अब हम माइक्रो में भी जब हम पढ़ते हैं तो वी अंडरस्टैंड अबाउट वन फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेकंड फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो आज की क्लास में व्हाट डिड वी डू? वी अंडरस्टूड माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट वी अंडरस्टूड इट ओनली फ्रॉम अ कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. वी अंडरस्टूड उसका डिमांड क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग डिमांड. अब नाउ व्हाट वील अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो दैट विल हैपन इज वील अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डिमांड इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, है ना. तो हाउ कैन दे प्रोड्यूस प्रॉफिट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट द सेम टाइम मैक्सिमम आउटपुट. तो विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स दे आर एबल टू मैक्सिमाइज आउटपुट. उससे प्रॉफिट भी हाई हो जाएगा एंड दे विल बी एबल टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री फॉर द लॉन्ग टाइम. तो हम ये समझेंगे एंड इन चैप्टर्स टू कम हम मैक्रो पे भी फोकस करेंगे. ठीक है सर. सो दिस वाज द इंटायर चैप्टर जो हमने किया था डिमांड एंड सप्लाई का. वी हैव डन अभी तक डिमांड. इन टुमारोज क्लास वी विल डू सप्लाई एंड अदर थिंग्स दैट अफेक्ट सप्लाई. I'll just give a brief overview of what affects supply. Costs affect supply. Productivity affects supply. तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स सप्लाई की. आर यू प्रोडक्टिव इनफ टू यूज द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू क्रिएट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट, है ना. सो हम ये सब समझेंगे. एट द सेम टाइम वील ऑल्सो अंडरस्टैंड सप्लाई. ठीक है. सप्लाई फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. Although the institute hasn't given supply in very big chunk, it is just very briefly described. तो इसलिए आई एम वांटिंग कि वी स्टार्ट दिस अ फ्रेश टुमारो, है ना. कोई लोड नहीं है. एट द सेम टाइम वी विल आल्सो डू क्वेश्चंस. आई वाजंट एबल टू गेट ऑन टू क्वेश्चंस टुडे, बट इट विल बी वेरी नाइस इफ वी स्टार्ट आवर क्लास टुमारो विद क्वेश्चंस. क्योंकि इफ यू सी यहाँ पे क्वेश्चंस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देयर इज प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट हम समझ रहे हैं. वी आर अंडरस्टैंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि उसका क्या प्राइस इलास्टिसिटी है. तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इन दी एग्जाम. हाउ कैन वी मनूवर, हाउ कैन वी कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी, हाउ कैन वी कैलकुलेट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. देयर आर नो डिफरेंट फार्मूलाज. जो हमने सेम प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला किया था
वही हम ट्विक करेंगे एंड वील यूज इट फॉर इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है, नथिंग विल चेंज. डिमांड, अगर ये इक्वेशन ये आपको दिया हुआ है, तो देन व्हाट इज द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी? व्हाट डू वी मीन बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड व्हाई डज इट हैपन? तो हमने अभी पढ़ा था मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. व्हाई डज इट हैपन? What are the factors that affect demand? What is a normal good? And then we'll come about productivity, costing, we'll come ahead. Okay, so this was today's class. I hope you took value from today's class. The intention of prerequisites ke lecture is to build those foundation with you, है ना. We are not trying to rush, we're not trying to just कि जल्दी जल्दी over हो जाए. Take it very easily and take it very lightly, है ना. तो जैसे although I had thought आज की we'll close demand and supply both, but there is nothing to force. First class थी, we can take it slow, we can understand concept. The most important thing is to understand. अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, राइट इट इन द चैट बॉक्स कि येस यू वर एबल टू अंडरस्टैंड. कोई भी इशू हो यू कैन रीच आउट टू मी, you can reach out to Arjun sir, है ना. We are here so that your prep is very very even in terms of efforts that you put in and at the same time the efforts that we put in, है ना. The entire thing is made so that it is very streamlined and structured for you. So if you got any value out of it, please drop it in the comments. Do let me know if it helped you, and we'll come out with more such lectures. So kal ka do not miss. We will complete supply and we'll complete the producer's point of view when he comes into the picture, है ना. So yes, and I hope the class was very fruitful. You took back something, and yes, do subscribe, give a thumbs up, and enjoy your Diwali vacation. But at the same time, do study along. Okay, great. I hope this helped. Let us meet in the class tomorrow. Great. Bye bye. Thank you. Bye bye.